वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन्हें हेतु जिनसे है सुशोभित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। प्रकाश ज्योति से भरा, प्रकाश ज्योति से भरा। આપણી વચ્ચે આપણા પ્રબોધક એવા બેક ટુ બેક 2 વાર એવા વંદનભાઈ એમની પત્ની સાથે આવેલા છે, તો આપણે એમને તાળીઓથી વધાવીશું. ત્યારે આવે ત્યારે સરે કીધું હતું કે આપણે વંદનભાઈ હવે આવે ત્યારે એમની સગાઈ થઈ જાય, પણ એમના વાઈફને જોડે લઈને જ આવ્યા છે. આજે 5 નવેમ્બરથી 9 નવેમ્બર સુધી આપણી વર્ષમાં 2 વખતની જે જીવન વિદ્યા અંતર્ગત જે પરિચય શિબિરની થતું હોય છે એની શૃંખલામાં આજે 5 નવેમ્બરથી 9 નવેમ્બર સુધી 5 દિવસીય જીવન વિદ્યા પરિચય શિબિર, જેનું નામ આપણે જોઈએ છે રિશ્તો કી પાઠશાલા એવું આપેલું છે. આ શિબિરમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારના જે પણ આ રોશનીની અંદર જેમને પણ
પોતાની સમજ પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એવા પ્રબોધકોને તમારી સમક્ષ આપણી શાળામાં આવતા હોય છે અને આપણને પણ એનો ખૂબ સારો એવો લાભ મળતો હોય છે. આજે આપણી સમક્ષ આજે 5 નવેમ્બર છે એટલે એક તમને કહી દઉં કે આજનો સંજોગ પણ કેવો છે. આ ગઈકાલે રાતે થોડું સર્ચ કરતો હતો એના ઉપરથી જાણવા મળ્યું છે કે આજે 5 નવેમ્બરને દેવ દિવાળી એટલે કે કાર્તિકી પૂર્ણિમા. ગઈકાલે એક નાનો અભ્યાસ કરતો હતો ને એમાંથી જાણવા મળ્યું, ભૈया बाबा जी को आज ही के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी संदर्भ में आज को कृतज्ञता दिवस की ओर से भी उसको कृतज्ञता दिवस तरीके पर मनावવામાં આવે છે. તો આપણા માટે આ પણ એક સોનામાં સુગંધ બરાબર છે કે આજે 5 નવેમ્બર અંગ્રેજી મહિનાને ન ગણતા પણ કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે જ બાબાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ને એના અંતર્ગત કૃતજ્ઞતા દિવસ છે. તો આપણા માટે આજથી જ આ શિબિરનો પ્રારંભ થાય છે અને એના પ્રબોધક તરીકે જેની દિલમાં એક ઈચ્છા હતી કે શ્याम भैया આવે અને भैया आपनो અહીં આવવું, પણ आपका यहाँ आना भी एक संयोग हुआ है. कैसे हुआ है वो आपको गिरीश भाई बताएंगे. અને જેમની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા એવા ડૉક્ટર શ્યામ કુમાર, IIT કાનપુર PhD હોલ્ડર. 2004થી તેઓ આ રોશનીની અંદર આવ્યા છે અને ત્યારથી આની અંતર્ગત કામ કરે છે. પોતાની સમજ પ્રમાણે પોતાની જે પણ બુદ્ધિ એમની જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એના અંતર્ગત આવા નાના નાના વર્કશોપ કરતા હોય છે. તો વધારે સમય લે કેમ કે આખે સમય સેશનોના પણ ક્યારેક એવા શોર્ટ પડશે એવું મને લાગે છે, કેમ કે ભૈયાનું કન્ટેન્ટ એમના પાસે ભૈયા ચોખ્ખું કહે છે મારી પાસે કોઈ સિલેબસ નથી, કોઈ સિલેબસ એમની પાસે છે નહીં, બસ પ્રસ્તુત થાય છે. પણ અહીંયા એક તમને વિશ્વાસ આપું છું કે વચ્ચે કોઈ પણ ક્યારે પણ તમને કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ભૈયા તમને આપવા માટે તત્પર છે. તો તમને વિનંતી કે ક્યાંય પણ એવો પ્રશ્ન ક્લિક થયો હોય તો એ પ્રશ્ન તમે નોટ ડાઉન કરીને પૂછી શકો છો અને એ તમને ઇન્સ્ટન્ટ તમારે એ જવાબ જોતો હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ આપશે. તમે એમ કહો આનો જવાબ મારે પર્સનલી જોવે છે તો એ પણ જવાબ તમને આપવા ભૈયાની ખૂબ તત્પરતા છે. તો આટલું એક તમે તમારા જે પણ પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નો તમે પૂછી શકો છો. વધારે સમય નહીં લેતા ડૉક્ટર શ્યામ કુમારના પરિચય માટે હું આપણા બંને માર્ગદર્શક ગિરીશભાઈ અને સતીશભાઈ ને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્યામ ભૈયાનો પ્રાથમિક પરિચય આપશે. બધાને નવા વર્ષના राम राम. सभी को नए साल के लिए शुभकामनाएं. वो श्याम भैया के बारे में जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे 3 साल की एक ख्वाहिश थी, 3 साल से कहीं पड़ी हुई थी. श्याम भैया को सुनना है सुनना है सुनना है, क्योंकि वो व्यक्तित्व ऐसा है जो जीवन रीत्या मध्यस्थ दर्शन को थोड़ा बहुत भी जानता है. उनके लिए श्याम भैया को सुनना, उनके पास से इस चीज़ को समझना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो उनको सुनने के लिए मैं 3 साल से सोच रहा था. तो एक बार बीजापुर में था लेकिन पूरा मैं अटेंड नहीं कर पाया था. तो देखो नेचर की क्या ताकत है कि हम कभी कोई दिल से जब कुछ भी सोचते हैं ना, तो देखो श्याम भैया आज हमारे पास है. तो श्याम भैया का ऐसा जो जर्नी है, वो खुद IIT कानपुर के ग्रेजुएट है. IIT यानी इंडिया की रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जो साइंस वाले बैकग्राउंड से है वो उनको मालूम है. और वहाँ पे उन्होंने PhD भी किया हुआ है, मतलब डॉक्टर, इसीलिए डॉक्टर श्याम कुमार बोलते हैं. उनकी जो पर्टिकुलर दर्शन को लेके जो यात्रा शुरू हुई वो 2004 से शुरू हुई. यानी कि आज कितने 21 ईयर्स हो गए, मेरे ख्याल से 21 प्लस हो गए. तो 21 साल से कोई इस दर्शन को लेके कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी से चल रहा है. और हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे शिविर चलेगी तब भी महसूस होगा, क्योंकि हम तो एक दिन उनके साथ रहे हैं तो हमको मालूम है कि जो खुशी है उनकी,
हम बोलते हैं ना निरंतर सुखी रहना तो वो हमें वहाँ पे प्रतीत होती है कि नहीं यार ये चीज़ है जो संभव है। तो 2004 से जीवन विद्या से वो जुड़े हैं और उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शनों का बहुत डिटेल से अध्ययन किया है, क्योंकि उनका एक बेसिक शौक रहा है बचपन से रीडिंग का। उनका मानना है कि रासायनिक इंजीनियरिंग से हल होने वाली दुनिया की समस्याएं सीमित है, मतलब वो केमिकल इंजीनियर है, तो उनको लगता है कि मैं केमिकल इंजीनियर बन के जितना प्रॉब्लम दुनिया का सॉल्व करूंगा वो लिमिटेड है। जबकि अमानवीय व्यवहार की समस्याएं अधिक गंभीर हैं। तो उनको कुछ बड़ा काम करना था, तो बड़ा काम करने के लिए उन्हें सोचा कि मैं केमिकल इंजीनियर बन के मैं केमिकल इंजीनियरिंग में जाऊं और अच्छा पैकेज लूं, कि बेटर है उससे कुछ बड़ा काम है। तो वो है कि अभी जो समस्याएं चल रही है समाज की, उसमें इंसान के साथ जीना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आज हम यहाँ से अपनी कोई बहन रात को 2 बजे भी बाहर निकलती है तो हमके दिमाग में ऐसा तो नहीं आता है कोई शेर आके खा जाएगा उसको। दिमाग में तो यही आता है कि कोई उसके साथ अमानवीय व्यवहार ना हो जाए। तो वो किसका डर है? तो मानव के साथ है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे अपना छोटा बच्चा है बाहर खेलने चला गया तो भी हमारे दिमाग में यही चलता है। अभी तो वो चिंता है नहीं, जंगल में तो रहते नहीं है, तो उससे तो हम बाहर निकल गए, लेकिन इंसान के साथ जीना अभी नहीं हो पा रहा है। तो भैया ने ऐसे सोचा कि अमानवीय व्यवहार वो बड़ी समस्या है, उसके लिए अपना जीवन लगाया जाए। वर्तमान की जो गतिविधियां है उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जीवन विद्या नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। उस टीम का हिस्सा है जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए मूल्य आधारित शैक्षणिक सामग्री जैसे पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, वो सारे एरिया में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान, आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर के शिक्षकों और छात्रों के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पर 10 दिन से 10, अभी तो मेरे ख्याल से पुराना डेटा है, अभी तो बहुत सारी उनकी कार्यशालाएं हो गई है। तो आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ है और आज का दिन भी बहुत शुभ है। आज सुबह ही मुझे पार्थ भाई ने बताया कि जीवन विद्या का हम जो मध्यस्थ दर्शन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके जो प्रणेता है श्रद्धेय ए नागराज जी, उनको आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनको एक ज्ञान हुआ था। तो बहुत बड़ा दिन है और हमें पहले मालूम नहीं था, लेकिन आज मालूम हुआ और आज से हमारी शिविर शुरू हो रही है। तो अपनी भैया को सुनना है हमें तो, क्योंकि एक आधा दिन कम हो गया है, फिर लास्ट में 5 दिन की जगह पे 4.5 दिन जैसा हो गया है। तो मैं अपना टाइम नहीं ले रहा हूँ। और बीच में अभी पार्थ भैया ने बताया, वैसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो ये जो है ना, ये कोई सत्संग जैसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन आंसरिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो चालू सेशन में कुछ भी दिमाग में आता है तो उसको हम कॉपी में बैक साइड लिख सकते हैं, और उसी टाइम पे भी जैसे टाइम मिलता है तो हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। तो 2 वे चलेगा तो वो अच्छा चलेगा। और साथ में जो बाहर से हमारे 30 जितने भाई बहन आए हुए हैं, सबको फिर बाद में हम रिसेस के दरमियान मिल लेंगे। तो उन सबका भी स्वागत है एंजल्स परिवार में। जो कोई बड़ौदा से आया हुआ है, कोई अहमदाबाद से आया हुआ है, ये प्रवीण दादा है, वो 2nd टाइम आए हमारे यहाँ पे। तो ऐसे जो भी बाहर से आए हैं वो सबको एंजल्स परिवार की वजह से तरफ से वेलकम है। और अभी आगे मैं श्याम भैया को विनती करूँगा इसको कंटिन्यू करें। धन्यवाद सभी को। ऊपर अभी ठीक है? पीछे आवाज आ रही है क्यों? क्वेश्चंस के लिए हैंड माइक को दे के रखना पड़ेगा कहीं पे 1-2 लोगों को।
अलग अलग जगहों पे उसको रख देना होगा ताकि क्वेश्चंस में सुविधा हो सके। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन विद्या शिविर नहीं किया है? 1 2 3 4 5 6। तो जो भी आप 6-7 लोग हैं उनसे सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा कठिन लगे तो आराम से चलिएगा, क्योंकि चूँकि ज़्यादातर लोग शिविर किए हुए हैं इसलिए मैं बहुत बेसिक बातों को रिपीट करने से नहीं शुरू कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में चलाना चाहूँगा ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल पाए इस पूरी बात का, और अपने जीने में आज के दिन कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं उसकी कुछ बारीकियां पकड़ में आ सके। तो मैं ये 2 चीज़ों को कोर में रख के डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो पूरे इस बात का विस्तार हमको ठीक से पता चल सके, दूसरा उसको जब जीने में अप्लाई करने जाते हैं तो आज की परिस्थिति में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि जो नए लोग हैं 6-7, उनको हो सकता है कनेक्ट करने में थोड़ी कठिनाई हो, तो थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है 1 दिन से 2 दिन में धीरे धीरे कनेक्ट कर लेंगे। अगर सभी लोग नए होते तो मैं दूसरी तरह से शुरू करता, लेकिन मैं उस तरह से नहीं कर रहा हूँ। इस जैसा कि अभी सत्र में थोड़ा पहले बता रहे थे कि कार्तिक पूर्णिमा 1968 वो समय था जब श्रद्धेय नागराज जी, जो ये दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने जो समाधि संयम विधि से इस पूरे काम को किया था, अभिव्यक्त किया है, तो उनके संयम के सफल होने का दिन आज है। और मुझे भी 5 मिनट पहले ही पता चला कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। तो किसी भी चर्चा को शुरू करने के पहले देखेंगे ना, तो मनुष्य कोई भी पैदा होता है उसके आगे पीछे की एक पूरी श्रृंखला होती है। तो मैं भी अगर इस पूरी बात को कर रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ही ये सारा कुछ ढूंढ करके निकाला है और वहाँ से मैं इस बात को शुरू कर रहा हूँ। कोई एक बच्चा बड़ा होता है, सैकड़ों लोगों का योगदान उसके जीने में होता ही है। माता पिता से लेकर के, गुरु से लेकर के, शिक्षक से लेकर के, समाज तक के बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आग की खोज नहीं हुई होती, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो क्या आज हम कार और एरोप्लेन बना पाते? तो जिन्होंने कभी आग की खोज की होगी, पहिए का आविष्कार किया होगा, वो सब आज के दिन हमारे कार और एरोप्लेन बनने में सहयोगी है। ये विस्तार जितना जितना दिखता है ना, उतना ये समझ में आता है कि उन सभी सुप्रसिद्ध प्रदर्शकों के प्रति जिन्होंने मानवीयता को समझने में, जीने में, समाज में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है, उन सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है ही, योगदान है ही। इस रूप में कृतज्ञता का भाव होना स्वाभाविक है। ध्यान से देखेंगे ना, तो कृतज्ञता कोई जबरदस्ती विकसित करने की वस्तु नहीं है अपने में। अगर हमको कृतज्ञता का भाव किसी के प्रति होना है, तो ये कोई जबरदस्ती सुबह से शाम तक माला जपने की जरूरत नहीं है कि उनके प्रति कृतज्ञता रखनी है। हमको करना क्या होता है? उनसे मिलने वाले सहयोग को पहचानना होता है और उसको ध्यान में बना के, स्मरण में बना के रखना होता है। अगर हमारी जिंदगी में आपसे मिलने वाला सहयोग हमको दिखाई देता है, उसको मैं पहचान पाता हूँ, उस पर मेरा ध्यान बना रहता है, आपके प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता होगी कि नहीं होगी? अगर आपका योगदान हमको अपनी जिंदगी में दिखाई नहीं दे, वो स्मरण में बना नहीं रहे, कृतज्ञता हो भी सकती है क्या? तो ये सभी भाव, आगे चल के हम एक एक भावों को देखेंगे। मानव मानव संबंध में ये सभी भाव कोई जबरदस्ती पैदा करने की वस्तु नहीं है, बल्कि अस्तित्व की कुछ निश्चित समझ के आधार पर
वास्तविकताओं की, रियलिटी की कुछ निश्चित समझ के आधार पर ये भाव अपने में स्वाभाविक रूप से आते हैं, प्रकट होते हैं, उभरते हैं। तो मूल मुद्दा इन भावों के साथ जबरदस्ती संघर्ष करने का नहीं है। मूल मुद्दा अस्तित्व की उन वास्तविकताओं को समझने का है जिसके आधार पर ये भाव स्वाभाविक रूप से अपने में आते हैं। ये पकड़ में आती बात? कहीं भी कठिनाई लगे बिना किसी संकोच के अपना हाथ ऊपर कर लीजिएगा, माइक लेकर के बोल दीजिएगा। माइक से बोलने से इतना फ़ायदा है कि थोड़ी रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी और मुझे भी सुनाई दे देगा ठीक से। ठीक है। मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में देखेंगे तो श्रद्धेय नागराज जी के प्रति कृतज्ञता बहुत स्वाभाविक है, जिन्होंने इस मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का प्रतिपादन किया है। मैं अपने संदर्भ में देखूं तो जैसा कि परिचय में बता रहे थे, मैं कानपुर में एक लंबे समय रहा। कानपुर में एक सेंटर है हम लोगों का, मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान, जिसको गणेश बागड़िया जी देखा करते हैं। तो उनके सानिध्य में रह करके मैंने एक लंबा समय कानपुर में बिताया है और इस दर्शन को समझने, जीने, अभ्यास करने का काम किया है। तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति कृतज्ञता होना बनता ही है। तो मैं अपनी जर्नी की जगह से देखूं तो ये 3 कृतज्ञता हमको दिखाई देती है उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने मानवीयता को समझने, जीने और समाज में स्थापित करने का काम किया। श्रद्धेय नागराज जी के प्रति जिन्होंने इस दर्शन को प्रतिपादित करने का काम किया, और गणेश बागड़िया जी और कानपुर की उस पूरी मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान की टीम के प्रति जिनके सानिध्य में मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ। और ये मध्यस्थ दर्शन की इस प्रस्तुति के संदर्भ में कृतज्ञता को व्यक्त कर रहा हूँ तो ऐसा है। अगर अपने पूरे जीने के संदर्भ में देखूंगा तो माता पिता, बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे और लोगों का भी योगदान उस लिस्ट में आएगा, लेकिन अभी इस प्रस्तुति के संदर्भ में मैं कृतज्ञता को लिमिट करके रखा हूँ, इसलिए इतने को ही लिख रहा हूँ। इतने के साथ देखेंगे तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा इस मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं फिर से याद दिला दूं कि जो भी नए लोग हैं थोड़ा धैर्य रखें। मैं प्रधानता से ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब एकाध शिविर किए हुए हैं, तो मैं बैकग्राउंड से यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को। तो पूरे मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में देखेंगे ना तो ये दिखता है कि पूरी प्रकृति में जितनी भी इकाइयाँ दिखाई देती हैं, हर इकाई अपने में एक व्यवस्था के रूप में दिखती है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती हुई दिखाई देती है। सामान्य ढंग से भी देखिए तो हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के रूप में बना रहता है, अणु के रूप में बना रहता है। दूसरे हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ उसको पहचान करके अणु बनाता है, दूसरे अणुओं को पहचान करके अणुरचना बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में आदमी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो परमाणु, वो एटम कॉम्पिटेंट है एक दूसरे को पहचान करके मॉलिक्यूल्स बनाने में, और वो मॉलिक्यूल्स कॉम्पिटेंट हैं, सफिशिएंट हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल को पहचान करके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में। इनफैक्ट इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो ये समझ में आता है, कल्पना में भी देखें तो धरती पहले बनी होगी, आदमी बाद में आया होगा कि नहीं। उल्टा संभव नहीं है कि आदमी पहले आया हो और फिर उसने धरती बनाया हो। तो ये दिखता है कि धरती पर ये पूरी जो मॉलिक्यूल के रूप में, एटम के रूप में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में ये जो पूरी पदार्थ अवस्था दिखती है, इस पूरे का निर्माण एक व्यवस्था के रूप में पहले से दिखाई देता है। उसी तरह से जब किसी धरती पर पानी बनने का काम हो पाता है तो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ने पर देखिएगा तो पेड़ पौधों के होने की संभावना दिखाई देती है। अभी भी आप देखेंगे किसी तालाब के किनारे या जहाँ पानी जमा होता है, धीरे धीरे काई के बनने का काम वहाँ शुरू हो जाता है। काई जानते हैं गुजरात में क्या कहते?
वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो प्राण अवस्था का प्रारंभिक रूप है। पेड़ पौधों का प्रारंभिक स्वरूप वहाँ पे दिखाई देता है। कल्पना में ये बात भी समझ में आती है कि पेड़ पौधे के होने के बाद पशु पक्षियों का होना है, क्योंकि पशु पक्षियों को जो भोजन मिलना है वो तो उसी पेड़ पौधे से मिलना है। तो नेचर की बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन ये दिखाई देती है कि किसी भी अवस्था के आने के पहले उसकी जो आवश्यक ज़रूरतें हैं वो आती हैं। तो एक पेड़ पौधे को बड़ा होने के लिए जो हवा, पानी, मिट्टी चाहिए वो नेचर में पहले आता है, फिर पेड़ पौधे आते हैं। इसी तरह से पशु पक्षियों को भोजन के लिए जो पेड़ पौधे चाहिए या जो हवा, पानी, मिट्टी चाहिए वो पहले आता है, उसके बाद ये पशु पक्षी आते हैं। उस विकास क्रम में आगे ये दिखता है कि पशु पक्षियों के होने के बाद मानव का होना है। तो मानव की भी ये सारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए देखेंगे तो सारा प्रावधान पहले से है। वो पदार्थ अवस्था, वो प्राण अवस्था, वो जीव अवस्था, ये पहले से है, उसके बाद मनुष्य का होना है। मनुष्य का होना है। इन शब्दों से आप लोग परिचित हैं ना? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, कठिनाई तो नहीं ना? कहीं भी लगे कोई शब्द से परिचित नहीं है तो बिना संकोच के पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पूरी प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में देखने जाएंगे तो मनुष्य के प्रकट होने तक मानव का कोई रोल नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद आदमी के, मानव के करने की बात है। तो हमारा जो सारा भागीदारी है उसके पहले का जो पूरा अस्तित्व अभिव्यक्त हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है पदार्थ अवस्था के रूप में, प्राण अवस्था के रूप में, जीव अवस्था के रूप में, इवन मानव के रूप में, हमारे आपके होने तक, यहाँ तक तो मानव का कोई योगदान ही नहीं है अस्तित्व में। लेकिन वो पूरी प्रकृति एक व्यवस्था के रूप में चलती हुई दिखाई देती है। और ये सब जगह पर देख सकते हैं। ये हवा, पानी, मिट्टी पेड़ पौधों के लिए सहयोगी दिखाई देते हैं। जहाँ की हवा, पानी, मिट्टी अच्छी होती है वहाँ के पेड़ पौधे अच्छे होंगे। लौट के ये भी दिखाई देता है कि ये पेड़ पौधे बने रहते हुए भी और बाद में जब डिग्रेड होते हैं, डिफॉर्म होते हैं, लौट करके मिट्टी में मिलते हैं तो ये वापस मिट्टी को पहले से ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, पहले से ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। ये पूरकता बहुत आसानी से देखी जा सकती है। तो प्राण अवस्था के आने से, पेड़ पौधों के आने से दोनों बातें होती। ये अपना पोषण, अपना नर्चर उसी मिट्टी से लेते हैं, लौट करके उसी मिट्टी को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, बेटर कर देते हैं। देख सकते हैं इस बात को। ऐसे ही इसमें जब पशु पक्षियों को ऐड करते हैं ना, तो ये दिखता है कि ये पशु पक्षी भी अपना पोषण उसी हवा, पानी से लेते हैं और उन्हीं पेड़ पौधों से लेते हैं। लौट करके वो पेड़ पौधों को और हवा, पानी, मिट्टी को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। आप देखिए पेड़ पौधों का जो फोटोसिंथेसिस का काम है, प्रकाश संश्लेषण का काम है, उसके तहत वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं। पशु पक्षियों के शरीर में देखिए उल्टी प्रक्रिया है, ठीक है। श्वसन के रूप में मैं उसको उल्टा कह रहा हूँ सिर्फ क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस महत्वपूर्ण है, श्वसन वहाँ भी वैसा है। लेकिन यहाँ दिखता है कि इनके लिए ऑक्सीजन श्वसन में चाहिए और CO2 ये जनरेट करने का काम कर पाते हैं। इस रूप में ये दोनों की एक पूरकता दिखाई देती है, एक कॉम्प्लीमेंट्रीनेस दिखाई देता है। इसी तरह से एक पेड़ पौधा जो वापस सर गल करके 6 महीने में खाद बनता, मिट्टी बनता, उसको गाय खा लेती है, गोबर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, गोमूत्र में कन्वर्ट कर देती है और वो 15 दिन 1 महीने में वापस मिट्टी को फर्टाइल बना देती है। तो वो जो पूरी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी होने वाली थी, ये पशु पक्षी के ऐड होने से 15 दिन 1 महीने में पूरा हो गया और एक ज़्यादा बेहतर खाद बन करके आता है। इसी तरह से
पेड़ पौधों के बहुत सारे रोगों को दूर करने में इन पशु पक्षियों का मल मूत्र गंध ये प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। आज बहुत सारे लोग जो नेचुरल फार्मिंग का काम किया करते हैं वो गोबर गोमूत्र से बहुत सारी दवाइयों को बना करके पौधों के लिए देखिएगा तो मेडिसिन की तरह यूज़ करने का काम करते हैं। तो ये दिखता है कि पशु पक्षियों के ऐड होने से आने से ये जो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था का पूरकता का चक्र था वो पहले से और ज़्यादा मजबूत होता है, और ज़्यादा बेहतर होता है, और ज़्यादा समृद्ध होता है। देख सकते हैं इस बात को। जब मानव के रूप में हम अपने को ऐड करते हैं ना, तो ये बात दिखता है कि ये तीनों अवस्थाएं हमारे लिए पूरक हैं ही, कॉम्प्लीमेंट्री है ही, सहयोगी है ही। एक लिस्ट बनाएंगे तो एक लंबी चीज़ों की ज़रूरत आपको दिखाई देगी जो हम पदार्थ अवस्था से, प्राण अवस्था से, जीव अवस्था से लेने का काम कर रहे हैं। अपनी फंडामेंटल डिज़ायर को, अपनी मूल कामना को भी देखेंगे तो आप अपने से पूछ करके देख सकते कि हम भी इन नेचर के लिए पूरक होना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहते हैं, या इनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हमको नेचुरली अपने में क्या एक्सेप्टेबल होता है, सहज रूप में क्या स्वीकार होता है, इनके लिए पूरक होना या इनको एक्सप्लॉइट करना। पूरक होना तो मूल कामना हम में भी है, वो बीज परस्पर पूरकता का हमारे अंदर है ही। ऐसा नहीं है कि वो बीज कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत है, वो बीज हमारे अंदर है। करना क्या है, एक अनुकूल वातावरण उसको देना है ताकि वो बीज धीरे धीरे बड़ा हो करके एक वृक्ष के रूप में प्रकट हो सके और उसका फल हमको मिल सके। जब तक वो बीज के रूप में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे प्रयोग में नहीं आता, उपयोग में नहीं आता। जब वो अनुकूलता पा करके एक वृक्ष बन जाता है और फल देना शुरू करता है तो हमारे लिए वही उपयोगी हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो मानव के लिए उस बीज के वृक्ष बनने में जो मुख्य योगदान है वो शिक्षा संस्कार का योगदान है। इस शिक्षा संस्कार से आदमी इस पूरे प्रकृति की व्यवस्था को ठीक ठीक समझने का और भागीदारी करने का काम कर पाता है, क्योंकि मानव की ये मौलिकता है कि वो इस प्रकृति की व्यवस्था को समझ करके ही इसमें भागीदारी कर सकता है। बिना समझे भागीदारी करने जाएगा तो जाने अनजाने 10 गलतियां होंगी ही। तो मनुष्य के लिए भागीदारी करने से, जीने से पहले महत्वपूर्ण है समझना। अगर इस पूरे प्रकृति की व्यवस्था हमको समझ में नहीं आती है और हम उसमें भागीदारी शुरू कर देंगे तो समस्या तो होगी। यहाँ विद्यालय चलता है, आपके विद्यालय की भी एक व्यवस्था होगी। मैं उस सारी व्यवस्था को समझे बिना उसमें घुसूं और कुछ भी करना शुरू कर दूं, आपके लिए सहयोग होगा कि समस्या होगी? समस्या होगी ना। तो नेचर के साथ भी, एग्जिस्टेंस के साथ भी, अस्तित्व में जीते हुए भी अगर उसकी व्यवस्था को समझने का काम हम पहले नहीं करते हैं तो हमारी भागीदारी ठीक नहीं हो सकती है। तो मानव के लिए जो फंडामेंटल मूल काम है वो उस अस्तित्व की व्यवस्था को पहले समझने का है, फिर उसमें ठीक ठीक भागीदारी करने का है। और ये कोई बहुत विशेष काम नहीं है, कोई बहुत पहाड़ तोड़ने का काम नहीं है, क्योंकि प्रकृति में स्वाभाविक रूप से ये हो ही रहा है कि इकाई स्वयं में व्यवस्था है, दूसरी इकाइयों के साथ मिल करके व्यवस्था में भागीदारी कर ही रही है। तो कोई बहुत विशेष काम करने का बात नहीं है ये, बल्कि अस्तित्व जैसा पहले से है ही, हमको वैसा होने की बात है। तो ये सहज और सामान्य होने की प्रक्रिया है, ना कि कुछ खास और विशेष होने की प्रक्रिया है। खास और विशेष तो हम हो ही रखे हैं, ये सामान्य और सहज होने की प्रक्रिया है। और अपने से ही इस बात को पूछ के देखिए कि परस्परता में सहज और सामान्य रहना ये ज़्यादा सरल है या खास और विशेष बने रहना ये ज़्यादा सरल है?
तो अभी हमको कई बार ये पूरी यात्रा कठिन अगर लगती है तो कठिन इसलिए नहीं लगती है कि ये यात्रा कठिन है, कठिन इसलिए लगती है कि हमने अपने जीने का जो आदत और अभ्यास बना लिया है वो उल्टा बना लिया है, टेढ़ा मेढ़ा बना लिया है। वो ऐसा है कि अगर किसी ने 10 साल सिर के बल चलने का अभ्यास कर लिया हो तो 10 साल बाद उसको पैर के बल चलना कठिन लगता है। पैर के बल चलना कठिन नहीं है, 10 साल का जो अभ्यास हमने उल्टा कर लिया है सिर के बल चलने का ना, इसलिए वो कठिन लगता है। जैसे जैसे पैर के बल चलना शुरू करते हैं थोड़े समय में दिखता है कि वो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे थे, ये ज़्यादा सरल काम है। तो अभी जिस तरह के सिस्टम में, जिस तरह के समाज परिवेश में, जिस जीवन शैली में जीने का काम हम कर रहे हैं ना, धीरे धीरे दिखता है कि ये ज़्यादा कठिन है, ये ज़्यादा तनाव देने वाला है, ये ज़्यादा दबाव बनाने वाला है। इसमें हमारी दुख और अशांति कई गुना अधिक बनी रहती है। और जितना जितना समझ के व्यवस्थित होकर जीने का हम काम करते हैं, जिंदगी उतनी सरल और सहज होती चली जाती है, सहज होती चली जाती है। ऐसा है कि नहीं, उसको धीरे धीरे और आगे हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे। पर अब इसमें लौट के देखेंगे ना कि मानव के होने के बाद मानव के जीने का रोल कहाँ कहाँ बनता है। तो मानव के जीने का एक रोल तो बनता है इस पूरी प्रकृति के साथ, इस पूरे अस्तित्व के साथ। उसका दूसरा रोल बनता है मानव मानव के बीच जीने की परस्परता में, जो परिवार और समाज के रूप में हमको दिखाई देता है। तो एक तो मानव के पहले जो ये तीनों अवस्थाएं थी, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, उस शेष प्रकृति के साथ मानव के जीने का रोल दिखता है। दूसरा रोल दिखता है मानव मानव की परस्परता में जीने का, जिसको हम परिवार और समाज के रूप में पहचानते हैं। फिर मानव के रूप में देखेंगे ना तो हमारे अंदर भी सोच के रूप में, विचार के रूप में, इच्छा के रूप में, आशा के रूप में कुछ न कुछ अंदर चलता रहता है। वहाँ भी हमारे जीने का एक बड़ा हिस्सा चलता रहता है। आप देखिए, विचारों में अगर किसी दिन उलझन हो जाए, आपको तनाव हो जाए, ठीक है, आप आराम में रहते हैं कि परेशान होते? परेशान होते। तो ये दिखता है कि अपने आराम में बने रहने के लिए हमारे विचार का, हमारी इच्छा का, हमारे सोच का भी व्यवस्थित होना अपने अंदर जरूरी है। इसी तरह से हर मानव है तो किसी न किसी शरीर के साथ ही है। और शरीर में जब कभी भी कोई बीमारी होती है, कोई असुविधा होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो हमारे मानव के रूप में जीने में बाधा डालती है। इस रूप में शरीर की व्यवस्था को समझ करके उसको ठीक रखना भी हमारे लिए ज़रूरी दिखाई देता है। तो अब एक मानव को पूरा फैल करके देखेंगे ना, तो स्वयं को ठीक ठीक समझना, शरीर को ठीक ठीक समझना, परिवार को ठीक ठीक समझना, समाज को ठीक ठीक समझना और इस पूरे प्रकृति, पूरे अस्तित्व को ठीक ठीक समझना, फिर समझ करके उसमें व्यवस्थित होकर के जीना, ये करने का काम दिखता है, करने का काम दिखता है। ये बात पकड़ में आती कि मानव का जो मूल रोल दिखता है वो स्वयं को ठीक ठीक समझना, शरीर को ठीक ठीक समझना, परिवार को ठीक ठीक समझना, समाज को ठीक ठीक समझना, इस पूरे प्रकृति को, पूरे अस्तित्व को ठीक ठीक समझना और ठीक ठीक उसमें भागीदारी करना, ये जीने का, ये करने का काम दिखता है, काम दिखता है। अगर पूरे ट्रेडिशन को पलट के देखेंगे, पूरी मानव जाति के जीने का जो आज के दिन का डिज़ाइन है उसको पलट के देखेंगे तो इसके किसी एक एक टुकड़े पर हम लोग अलग अलग तरह से काम करते रहे। तो जैसे आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा, परमात्मा जैसे मुद्दों पर चर्चा होती हुई दिखाई देती है। आज के युग में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर अभी भी उसका बहुत रोल दिखता है। आत्मा के स्वरूप पर, परमात्मा के स्वरूप पर चर्चा दिखाई देती।
जीवन विद्या को जैसे जैसे हम समझने जाते हैं ना, वैसे वैसे स्वयं की ठीक ठीक समझ होने से और अस्तित्व की ठीक ठीक समझ होने से आत्मा परमात्मा संबंधी चीज़ों में हमारी क्लैरिटी होती है, जो आध्यात्मिकता का सॉल्यूशन है, समाधान है। आध्यात्मिकता की जगह पे समाधान का मतलब है स्वयं के बारे में और अस्तित्व के बारे में ठीक ठीक समझ होना। ट्रेडिशनल भाषा में कहेंगे उसको तो आत्मा और परमात्मा जैसे वस्तुओं का ठीक ठीक पता होना। इसी तरह से आज के दिन बहुत सारी संस्थाएं आपको दिखाई देंगी जो समाज की व्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई दिखाई देती, चाहे वो गरीबों के कल्याण के लिए लगी हुई हो, चाहे जाति प्रथा को दूर करने में लगी हुई हो, चाहे महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा अलग अलग जगहों पर या रेस के आधार पर अन्याय हो रहा हो, ये सबको ठीक करने में लगे हुए दिखाई देते हैं। जितना जितना हमको समाज में व्यवस्था का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आता है, उतना उतना हमको इन कार्यक्रमों का सार्थक स्वरूप क्या हो वो ठीक से पकड़ में आता है। तो जितने तरह की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करने वाले लोग हैं, उनको जितना जितना समाज की व्यवस्था का स्वरूप क्या है, सही स्वरूप क्या है वो समझ में आता है, उतना उतना वहाँ पर हमको आराम मिल पाता है, हम व्यवस्थित होकर भागीदारी कर पाते हैं। हम सामान्य लोग जो परिवार में जीने वाले लोग हैं, ठीक है, जहाँ देखिएगा तो पति के साथ जीना, पत्नी के साथ जीना, बच्चों के साथ जीना, पेरेंट्स के साथ जीना, चाहे वो माँ बाप हों चाहे सास ससुर हों, कुछ मित्रों के साथ जीना, अपने काम करने की जगह पर कुछ लोगों के साथ जीना, ये हम सब के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। जाने अनजाने हम अपनी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को इन्हीं जगहों पर झेल रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप लौट करके ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी का कितना सारा दुख अमेरिका और पाकिस्तान वालों के कारण है और कितना सारा दुख उन अपने लोगों के कारण ही है, उन अपने लोगों के साथ ही है जिनके साथ हम एक बेहतर ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। तो हम जैसे जो सामान्य लोग हैं परिवार में जीने वाले, वहाँ की जगह से देखिएगा तो इन सभी संबंधों में माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, सास ससुर के साथ, पति पत्नी में, मित्र संबंध में, काम करने की जगह पर कलीग्स के साथ, इन सभी जगहों पर व्यवस्थित होके जीने के स्वरूप को समझने को ही कहा है परिवार में व्यवस्था को समझना। तो इसकी जितनी क्लैरिटी हमारी होती जाती है, परिवार में व्यवस्था की जितनी हमारी क्लैरिटी होती जाती है, उतना हमारा इन जगहों पर जीना ठीक होता जाता है। ऐसे ही आज के दिन देखेंगे तो एक ग्रुप आपको समाज में नेचर को सेव करने में लगा हुआ दिखाई देगा। पॉल्यूशन के मुद्दों पर, रिसोर्स डिप्लीशन के मुद्दों पर, प्रदूषण की समस्या पर, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव हो रहा है उस पर बहुत सारे ग्रुप अलग अलग तरह से काम करते हुए दिखाई देंगे। प्रकृति की व्यवस्था जितना जितना हमको ठीक ठीक समझ में आता है, उतना उतना वहाँ पर भी भागीदारी कैसे ठीक हो सकती है उस पर बात हो सकती है। जैसे मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हवा, पानी, मिट्टी, इनको अगर हम बेहतर करना चाहते हैं और हमको दिखाई देता है कि ये दिनों दिन खराब हो रहे, अभी दीपावली का समय गुजरा है, जब भी न्यूज़ चैनल चलाइए वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा और एक बहस चलती रहती, पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए। तो ये दिखता है कि पॉल्यूशन की समस्या से हम ग्रस्त हैं, पीने के पानी की समस्या से हम ग्रस्त होते जा रहे हैं। आज से 30-35 साल पहले ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि पानी कोई खरीद के पीने की चीज़ है। हम सब ने अपने बचपन में अगर देखा होगा तो पानी सभी जगहों पर फ्री में पीने के लिए उपलब्ध मिला होगा। आज बहुत कॉमन सी बात हो गई है कि पानी पीने का मतलब है 20 रुपये का बोतल खरीद के पीना, अगर घर से बाहर हैं तो। वो कल्पना में भी नहीं आता कि ये सहजता से उपलब्ध हो सकता था और रहा था। अभी से 30-35 साल पहले तक रहा था, हजारों साल से। ये बात तो तय है।
ये दिखता है, आप अपने से ही सवाल पूछ के देखें, ये हवा, पानी, मिट्टी, ये अपने आप खराब हो रहे हैं या हम आप मिल करके इसको खराब करने का काम कर रहे हैं? मानव के गलत जीवन शैली के कारण ये हवा, पानी, मिट्टी खराब हो रही है या ये सब पहले से खराब थी? दिखता है ना, मानव का योगदान है इसके खराब होने में। मैं ये सवाल भी पलट के पूछता हूँ कि हवा खराब हो जाए तो उससे समस्या हवा को है कि आदमी को है? तो ये दिखना भी जरूरी है कि समस्या हम पैदा कर रहे हैं हवा के साथ, पानी के साथ, मिट्टी के साथ, तो लौट करके भोगना भी हम ही को पड़ता। अगर मिट्टी को हम जहरीले रसायनों से जहरीला करते जा रहे हैं, लौट करके फसल के रूप में आके वो हम ही को नुकसान देने वाला है। मिट्टी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आदमी को है, प्रॉब्लम मानव को है, प्रॉब्लम हमको आपको है। इसी तरह से मैं एक सिंपल बात ये कहता रहता हूँ, आपको अगर इस कमरे की सफाई करनी हो और ये दिख रहा हो कि एक नाला गंदा इधर से आ रहा, तो आप कमरे की सफाई करने के लिए पहले उस गंदे नाले को बंद करने का काम करेंगे या पहले कमरे में झाड़ू पोछा वाइपर चलाएंगे? पहले नाले को बंद करने का काम करेंगे। तो अगर हमको दिखाई देता है कि प्रकृति के असंतुलित होने का कारण, प्रकृति में पॉल्यूशन का कारण, प्रकृति में रिसोर्स डिप्लीशन का कारण मानव की गलत जीवन शैली है, तो हम उस गलत जीवन शैली को ठीक करने का काम पहले करेंगे या हम मानेंगे कि सिर्फ एयर प्यूरीफायर और वाटर फिल्टर बना देने से काम चल जाएगा? इनफैक्ट ये बेसिक्स को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमको पता चल सके कि अगर हम प्रकृति के लिए सचमुच काम भी करना चाहते हैं तो कहाँ काम करें, कहाँ काम करें। हम उस नाले को खुला छोड़े रखेंगे जिससे कचरा और गंदा पानी आ रहा है, कितना भी झाड़ू पोछा वाइपर मारिए, एक तरफ से लगाएंगे नहीं, दूसरे तरफ से फैला हुआ मिलेगा। पूरी जिंदगी प्रयास करने पे भी एक कमरा साफ नहीं होगा, बाहर तो छोड़िए। तो ये समझना ज़रूरी है कि प्रकृति की व्यवस्था को हम ठीक ठीक समझते हैं ना, तो कहाँ भागीदारी करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करने की तरफ हमको आगे बढ़ना है, उसका उपाय हमको ठीक ठीक समझ में आता है, समझ में आता है। तो जो लोग भी आज के दिन प्रकृति के प्रेमी हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत सजग हैं और उनको संरक्षित रखना चाहते हैं, उन सबको भी एक तरीका मिल पाता है कि कैसे उसमें हम मीनिंगफुल ढंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आती? इतने तक में कोई भी कठिनाई हो तो बताइए। पीछे माइक दे दीजिएगा एक बार प्लीज़। अगर माइक है तो हाँ, एक आगे एक पीछे ऐसा रखेंगे ना तो हो जाएगा। नमस्कार, नमस्ते। प्रवीण बलिया वडोदरा से। आपने जो बताया कि ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का मूलभूत कारण पॉपुलेशन में जो वृद्धि है, वस्ती वृद्धि, वो भी तो है कि इतने सारे लोगों को रिसोर्सेस कैसे उपलब्ध कराएं और इतने सारे लोग गलत तरीके से रिसोर्स का उपयोग कर रहे हैं, समाधान कैसे करें कि उचित उपयोग करें। धन्यवाद। बढ़िया। आप देखिएगा, आप एक गिलास दूध उठा के पीते हैं, दूध अपने आप मुंह में आ जाता है या उसको पीने का निर्णय हम पहले लेते हैं और हाथ से उठाने का निर्णय लेते हैं, फिर वो मुंह में आता है? क्या होता है? हम निर्णय लेते हैं ना। तो अगर आज के दिन आदमी वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहा है, तो दुरुपयोग करने का निर्णय कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में हो रहा है, हो रहा है, तभी वो बाहर दुरुपयोग दिखाई दे रहा है ना। तो उपाय तो यही समझ में आता है कि बाहर अगर वस्तुओं के दुरुपयोग को भी हम रोकना चाहते हैं और उसको सदुपयोग में बदलना चाहते हैं, तो व्यक्ति की मानसिकता में, उसके जीने देखने के नज़रिए में बदलाव करने की ज़रूरत है। और जो बात मैं पीछे शिक्षा संस्कार के संदर्भ में कह रहा था, वो शिक्षा संस्कार का मतलब ही यही है कि सही क्या है, गलत क्या है,
सुख किस में है और किस में नहीं है, यह देखने की दृष्टि हम में से हर मानव में विकसित हो सके। इस वस्तु का प्रयोजन क्या है, सुख ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, शरीर स्वास्थ्य ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। ये सारी बातों की समझ अपने में विकसित हुए बिना ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी देखिएगा तो आदमी की मानसिकता पर काम होने की ज़रूरत है, और उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा संस्कार के ठीक होने की ज़रूरत है। और ये शिक्षा संस्कार 3 जगहों से हमको मिलता है। एक तो अपने परिवार से मिलता है, जिसमें बच्चा बड़ा होता ना, आप देखिए पेरेंट्स शाकाहारी होंगे तो बच्चा शाकाहारी हो जाता है, पेरेंट्स मांसाहारी होते हैं तो बच्चा मांस खाने लगता है, पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी बोलता है, पेरेंट्स गुजराती बोलते हैं तो बच्चा गुजराती बोलता है, अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलता है। दूसरा, हमारे शिक्षा संस्कार का जगह ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है, जहाँ हम बहुत सारा कुछ समझते हैं, सीखने का काम करते हैं। तीसरा जगह मीडिया, एडवर्टीजमेंट, संस्कृति सभ्यता के रूप में, टेलीविज़न के रूप में, मोबाइल और इंटरनेट के रूप में ये पूरा समाज है जो हमको ट्रेन कर रहा है, समझने सीखने का काम कर रहा है, अच्छे या बुरे तरीके से। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे घर का 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा खाना क्या खाएगा ना, वो हम घर वाले नहीं तय कर पाते। वो या तो उनके मित्र तय करते हैं या वो मीडिया तय करता है। जो सुबह शाम वो एडवर्टीजमेंट देख रहा है, वो एडवर्टीजमेंट तय करता है कि उसको क्या खाना है, या उसका फ्रेंड सर्कल जो खा रहा है वो तय करता है कि उसको क्या खाना है। 4-5 साल के बच्चों की भी ये स्थिति हो गई है। तो ये तीनों जगह पर ही शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया पर काम करने की ज़रूरत है, तभी इस मानसिकता में बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है। और आप ये कहेंगे कि पॉपुलेशन का बढ़ना प्रॉब्लम है जो आप कह रहे थे, तो इसको मैं इतना ही अभी कमेंट करूँगा कि ये देखना चाहिए अपने में पलट के कि अगर सचमुच हम समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जीते हैं तो हमारी उत्पादन क्षमता अधिक है या उपयोग अधिक है। अगर हमारा उपयोग अधिक है, एक परिवार में जीते हुए भी अगर मैं उत्पादन कम कर रहा हूँ, प्रयोग ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैं परिवार के लिए एसेट हूँ कि लाइबिलिटी हूँ? लाइबिलिटी हूँ। तो ये देखना चाहिए कि समझदारी और जिम्मेदारी के साथ मनुष्य की उत्पादन क्षमता उसके उपयोग करने से अधिक हो सकता कि नहीं हो सकता। अगर हमारी उत्पादन की क्षमता उपयोग करने से अधिक है तो जनसंख्या समस्या नहीं है। अगर हमारी उत्पादन क्षमता कम है, उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जो वस्तुतः भोग है वो ज़्यादा कर रहे हैं, उत्पादन कम कर रहे हैं, तो हम समस्या तो हैं जी। परिवार के लिए भी समस्याएं, समाज के लिए भी समस्याएं, धरती के लिए भी समस्या। तो जनसंख्या अपने में समस्या नहीं है, ना समझ आदमी समस्या है। समझदारी के साथ जिएंगे ना तो हम समस्या नहीं है बल्कि सहयोग है। हम परिवार में आप लोगों के साथ जिए, मेरा उत्पादन अधिक हो, उपयोग कम हो, तो आपके लिए सहयोग होंगे कि नहीं होंगे? एसेट होंगे ना जी, सहयोगी होंगे ना। ऐसे ही परिवार उत्पादन अधिक कर रहा है, उपयोग कम कर रहा है उससे, तो समाज के लिए एसेट होगा कि नहीं होगा? तो समझदार आदमी की जगह से देखेंगे तो वह परिवार, समाज, राष्ट्र और धरती के लिए सहयोग है, एसेट है, वरदान है। और नासमझ और भ्रमित आदमी को देखेंगे तो वह परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धरती के लिए बोझ है, बोझ है। तो जनसंख्या अपने में प्रॉब्लम नहीं है, समझदार आदमी सहयोग है, नासमझ आदमी समस्या है। तो यहाँ से वो बात पकड़ में आती है कि अंततोगत्वा आदमी को पहले स्वयं ठीक होने की ज़रूरत है, तभी दूसरों के ठीक होने के संदर्भ में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न हो तो बताइए।
ऐसे समझदारी में सहयोग देने वाले जो लोग हैं वो कम हैं और असहयोग देने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो असहयोगी लोग हैं उनको सहयोगी कैसे बनाया जा सकता है? यानी जीवन विद्या सब तक पहुंचाना जरूरी है। धन्यवाद। दोनों चीज़ जरूरी है। एक तो जीवन विद्या सब तक पहुंचाना जरूरी है, दूसरा जिन तक पहुंच गया है ना उनको भी समझ के इसको अपने आचरण में लाना जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि जिन तक पहुंच गया है ना जीवन विद्या, उनको भी इसको समझ सकें और अपने आचरण में जीने में उतार सकें। ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। इसके ऊपर यही कमेंट है मेरा कि समझ कर भी ना समझे और ना समझ होकर उलझ गए और उलझ कर भी ना उलझे, फिर क्या समझे? बढ़िया। तो इस पूरे विस्तार को जब देखते हैं ना तो ये दिखता है कि इस पूरे जीवन विद्या के कंटेंट में जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं उनको भी उनकी समस्या का समाधान मिल पाता है, जो पारिवारिक दृष्टि से देखते हैं उनको भी उनकी समस्या का समाधान मिल पाता है, जो सामाजिक दृष्टि से देखते हैं समाज की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, जैसे जीवन विद्या हर जगह कैसे पहुँचे, तो मैं अपनी भाषा में कहूँगा तो समाज की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, इस पर बात है, इस पर बात है। ऐसे ही समाज की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो सके, उत्पादन की, विनिमय की, प्रोडक्शन की, एक्सचेंज के सिस्टम्स कैसे बेहतर हो सकें कि हर आदमी के प्रोस्पेरिटी से जीने का प्रावधान हो सके, न्याय की व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो सकती हैं, चुनाव प्रक्रिया कैसे ठीक हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस कैसे ठीक हो सकता है, इन सारे प्रश्नों की दृष्टि से जो लोग इसको देखते हैं वो समाज की व्यवस्था की डिटेलिंग में उसके उत्तर को देख पाते हैं, और जो लोग प्रकृति पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं वो प्रकृति की व्यवस्था को समझने के क्रम में इसके उत्तर को देख पाते हैं। तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव से, किसी भी नज़रिए से इसको अप्रोच करने का काम करें, आपको अपने सवालों का उत्तर मिलता हुआ दिखाई देगा, दिखाई देगा। चूक इसमें सिर्फ एक होती है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जिस परिवेश से आए हुए होते हैं, परिवार से आए हुए हैं, तो परिवार के कंटेंट को ही प्रधानता से पकड़ते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हुए हैं तो उसी कंटेंट को प्रधानता से देखते हैं। प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी के रूप में हम आए हैं तो उसी कंटेंट को हम प्रधानता से पकड़ते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से आए हुए हैं तो आत्मा परमात्मा के कंटेंट पर ही प्रधानता से ध्यान देते हैं। हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम शुरू कहीं से भी करें, अपने बैकग्राउंड के कारण, अपनी परिस्थिति और परिवेश के कारण, पर जीना चूँकि हमारा इन सभी आयामों में है, इसलिए लौट करके इस पूरे को समझने की और इस पूरे के जगह पर भागीदारी करने की ज़रूरत है। एक टुकड़े से उस काम को चलाना चाहेंगे, कुछ दिन तो चलेगा, कुछ दिन के बाद फिर कोई ना कोई दूसरा हिस्सा फंसना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा ही है कि अगर पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सभी अंगों का ध्यान रखना पड़ेगा। आँख का ध्यान रखें, कान का नहीं रखें, कान का रखें, मुंह का नहीं रखें, पेट का रखें, पैर का नहीं रखें, समस्या तो होने ही वाली है, समस्या तो होनी। तो पर्सपेक्टिव ये है, स्कोप ये है जीवन विद्या का। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अप्रोच करिए कि पारिवारिक दृष्टि से अप्रोच करिए कि सामाजिक दृष्टि से अप्रोच करिए कि पर्यावरण की दृष्टि से अप्रोच करिए कि एक सामान्य मानव के रूप में हम कैसे जिएं, उस दृष्टि से अप्रोच करिए कि अपनी सुख शांति को पाने के लिए अप्रोच करिए। आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसका ब्यूटी है, ये इसका स्कोप है, ये इसका फैलाव है, फैलाव है। और चूंकि इस पूरे काम को करने वाला मानव है, इसलिए मानव को सबसे पहले स्वयं को समझना जरूरी है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हो तो सारा मेजरमेंट में एरर आएगा कि नहीं आएगा?
जिस स्केल से हम मापने का काम कर रहे हैं वो स्केल ही अगर खराब हो तो जिसको जिसको भी मापेंगे वो सब मेजरमेंट खराब आएगा कि नहीं, वो सब माप खराब होगी कि नहीं। अगर आदमी के रूप में हमने स्वयं को ही समझने का काम ठीक ठीक नहीं किया है तो बाकी जहाँ कहीं भी हम करने जाएंगे समझने का या जीने का काम, वहाँ समस्या होगी कि नहीं होगी। अगर हमारे पैर में खुद ही कीचड़ लगा हुआ है, जहाँ जहाँ भी जाएंगे हम सफाई करने के लिए भी अपने पैर के कीचड़ का दाग छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। खूब शुभ मानस से जाए कि हम बढ़िया सफाई करेंगे, लेकिन अगर पैर में कीचड़ सने हुए हैं तो उसका दाग तो उन सब जगहों पर लगना ही है ना। तो मानव अगर स्वयं को समझने के काम को ठीक ठीक नहीं करेगा तो परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व कहीं भी ठीक जीने का काम नहीं कर सकता। बल्कि इन सब जगहों पर जीने करने भी जाता है ना तो हमेशा यही लगता है कि समस्या दूसरे में है, हम में नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, दो बच्चे भी आपस में झगड़ा कर रहे हों, दोनों को अलग अलग बुला के पूछिए गलती किसकी थी। ठीक है, सामने वाले की। बच्चे करें यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, बड़ों को भी पूछ के देख लीजिए। जब दो लोगों का कहीं झगड़ा हो गया हो किसी बात को लेके, दोनों को अलग अलग बुला के पूछिए गलती किसकी थी, वो कहता है सामने वाला। अगर हमने खुद को ठीक ठीक समझने जीने का काम नहीं किया है ना तो हमको हमेशा समस्या सामने वाले में दिखाई देती है। तो हमको आप में समस्या दिखाई देती है, आपको हम में समस्या दिखाई देती है। हम आपको ठीक करने का प्रोग्राम बनाते हैं, आप हमको ठीक करने का प्रोग्राम बनाते हैं, और पूरी जिंदगी इसी प्रयास में गुजर जाती है। तो खुद को ठीक ठीक समझना इसलिए ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, हरे रंग का चश्मा लगा लेना। बच्चों का देखे होंगे, खेलने वाले चश्मे आते हैं अलग अलग रंग के। हरे रंग का चश्मा लगा लें, पूरा संसार हरा दिखता है। लाल रंग का चश्मा लगा लें, पूरा संसार लाल दिखता है। अब ये जो बाहर लाल दिख रहा है हमको, इसको अगर ठीक करना है तो बाहर रंग बदलने जाएंगे कि पहले अपना चश्मा उतारेंगे। तो मानव के रूप में अगर स्वयं को ही हमने ठीक ठीक समझने का काम नहीं किया है तो बाहर कितना भी हाथ पैर मारेंगे, कुछ ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। तो हम एक एक करके अभी जो अपने पास 4.5 दिन का समय है उसमें एक एक जगह पर मानव में व्यवस्था को, परिवार में व्यवस्था को, समाज में व्यवस्था को, प्रकृति में व्यवस्था को एक एक करके विस्तार करने का काम करेंगे। और इन कंटेंट को समझ करके हम अपने आज के जीने में क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, उसका अभ्यास कैसे करें, उसका थोड़ा विस्तार करने का काम करें। तो ये देखिएगा, तो 4.5 दिन के वर्कशॉप में जो एक्सपेंड करने का हम सोच रहे हैं वो इतना है। उसमें भी मानव और परिवार, ये दो को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ठीक से एक्सपेंड कर दूँ। समाज में चूँकि टीचर्स ज़्यादा लोग हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ शिक्षा संस्कार व्यवस्था पर थोड़ी अच्छे से बात कर दूँ, और व्यवस्था के बाकी आयामों पर मैं बहुत विस्तार को नहीं करके बहुत संक्षेप में कुछ बातों को मैं पूरा कर देना चाहूँगा। इतना अभी मैं ब्रॉडली सोच रहा हूँ करने का। अगर कोई बात आपको लगे कि और करनी है तो बता दीजिएगा, जो समय सीमा होगी उसमें जितना हो सकता है कर लेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। जो मैंने भेजा वो स्लाइड है क्या? हाइड होगा, उसको अनहाइड कर दो, पूरे को हाइड होगा, पूरे को अनहाइड कर दो। तो इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे ना तो एक आदमी के जो फैल करके जीने की जगह है, मानव का स्वयं को समझना, परिवार को, समाज को और इस पूरे प्रकृति और अस्तित्व को, इसमें सार्थक ढंग से समझने और जीने का स्वरूप क्या हो उसको हम थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं। तो मानव के संदर्भ में चर्चा से हम लोग शुरू करते हैं। ब्रेक कितने बजे करना है भैया? 11 बजे करें? 11 बजे
ठीक है, 11 बजे ब्रेक कर लेते हैं। तो है मेरे पास टाइम थोड़ा, मैं सोचता हूँ मानव में व्यवस्था को थोड़ा एक्सपेंड कर दूँ। हाँ श्योर, बढ़िया। तो मानव के रूप में जब स्वयं को समझने जाते हैं ना, तो अपने से एक सिंपल सवाल ये पूछने की ज़रूरत है कि मानव के रूप में हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। मानव के रूप में जीते हुए हमारा लक्ष्य क्या है, ये सवाल अपने से पूछने की ज़रूरत है। और चूँकि आप लोग शिविर किए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत उसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, कि बहुत संक्षेप में देखेंगे और अपने से ये सवाल पूछेंगे कि हम सुखी होना चाहते कि दुखी होना चाहते। उत्तर बहुत साफ है। समृद्धि चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, या अभाव, दरिद्रता और डिप्रीवेशन चाहते हैं। उत्तर बहुत साफ है कि हम सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। ये प्रश्न भी पूछ के देख लीजिए कि ये सुख और समृद्धि कभी कभी चाहते हैं या हमेशा चाहते हैं। दिन भर का कोई क्षण भी, कोई मोमेंट भी ऐसा है क्या जब हम सुखी होने के बदले दुखी होना चाहते हैं, जब हम समृद्ध होने के बदले अभावग्रस्त होना चाहते हैं? उत्तर बहुत साफ है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम अपने में सुख के बदले दुख चाहते हैं, समृद्धि के बदले अभाव चाहते हैं। तो ये दिखता है कि सुख और समृद्धि की निरंतरता, ये हमारी मूलभूत चाहना है, मूलभूत चाहना है। चूँकि इस गोल को हम पूरा करने का सोच रहे हैं, वो सुख और समृद्धि का गोल को हम पूरा करने का सोच रहे, इसलिए सुख क्या है, समृद्धि क्या है, उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। सुख के रूप में हमारा लक्ष्य क्या है, समृद्धि के रूप में हमारा जो लक्ष्य है, ये सुख क्या है, ये समृद्धि क्या है, उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि जिस लक्ष्य के पीछे हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्या, इसको अगर पहचानने का काम नहीं करेंगे तो पता चला कि हमने हीरा देख करके दौड़ना शुरू किया था और जब जब पहुंचा तो उसको कांच का टुकड़ा पाया। कि वो बचपन से जो दौड़ होती ना, हम लोग IIT में बार बार मजाक करते थे कि 11th-12th में जो बच्चा उसके पहले जो पढ़ रहा होता है ना, उसको माँ बाप कहते हैं बस बेटा 10th में अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है। 10th में जब वो अच्छे नंबर आ जाते हैं ना, और IIT JEE मेडिकल का तैयारी शुरू करते, हम लोग JEE का प्रिपरेशन करते थे, तो ये बात होती थी कि ये 2 साल बेटा ठीक से मेहनत कर लो, एक बार IIT में एडमिशन हो जाएगा ना तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है उनको तो ये भ्रम जिंदगी भर बना रहता है कि IIT में एडमिशन हो जाता तो ज़िंदगी सफल हो जाती। जिनका हो जाता है ना, उनको पहले 3-4 दिन के अंदर ही भ्रम टूट जाता है, ज़्यादा दिन भी नहीं लगता, ज़्यादा दिन भी नहीं लगता। वैसे ही देखेंगे ना तो पूरी जिंदगी की डिज़ाइन अभी हमारी ऐसी हो गई है कि सुख के रूप में जो अलग अलग गोल हम बनाए होते हैं और उसको पाने के पीछे दौड़ रहे होते हैं, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक लगता है बड़ी उपलब्धि हो जाती। तो जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनको लगता है बस नौकरी लग जाए ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जिनकी लग गई उनको दिखता है कि और भी गम है दुनिया में इस नौकरी के सिवा। तो एक के बाद एक उसमें देखेंगे ना तो प्रमोशन का गोल होता है, प्रिंसिपल बनने का गोल होता है, वाइस चांसलर बनने का गोल होता है, ये चलता रहता है एक के बाद एक। और उस क्रम में हमको हर बार लगता है कि ये हो जाएगा तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि इन चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करें, ज़रूर प्रयास करें, लेकिन ये भ्रम अगर पाल करके रखे हैं कि प्रिंसिपल बनने से ज़िंदगी सफल हो जाएगी और वाइस चांसलर बनने से ज़िंदगी सफल हो जाएगी, तो वहाँ रुक के एक बार देखने की ज़रूरत है। अगर उस विधि से हम दौड़ते जाते ना, तो मैं उसका एक सरल उदाहरण हमेशा देता हूँ कि आप बाहर मैदान में खड़े होंगे ना, तो आसमान ऐसा लगता है जैसे 3 किलोमीटर बाद धरती से मिल रहा है। खुली जगह पर खड़े होकर देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा वो 3 किलोमीटर बाद
ये जो क्षितिज है वो वहाँ मिल रहा है धरती से। 3 किलोमीटर चल लीजिएगा ना, फिर भी वो 3 किलोमीटर ही दूर रहता है। ठीक तो अभी हमारा जो ये सुख पाने का डिज़ाइन हो गया है ना, वो दिखता है कि कितना भी उस दिशा में दौड़ लगाते जाइए, दूरी एक जैसी बनी रहती है, दूरी एक जैसी बनी रहती है। वो वही 3 किलोमीटर दूर रहता है, 3 का 2 भी नहीं होता। तो ये समझना जरूरी है कि गोल के रूप में जो सुख हम पहचान रहे हैं, वो सुख वस्तुतः है क्या, सुख होता कहाँ है, और कैसे उसको हम कर सकते हैं, ताकि जहाँ सुख मिल सकता है वहाँ सुख ढूंढें, जहाँ बाकी चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ बाकी चीज़ें ढूंढें, कि नहीं। वो हमारे यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाते रहते हैं कि, और कहानी को कहानी की तरह ही लीजिएगा, उसमें जितने अंशों में उस बात को कहें उतने अंशों में ही उसको लेने की ज़रूरत है। और मुल्ला नसरुद्दीन एक फिक्सियस कैरेक्टर है, तो मैं उसी को यूज़ कर ले रहा हूँ। कोई कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कहते कि वो एक शाम के समय एक लैंप पोस्ट के नीचे जो है ना, अपनी अंगूठी ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। राह चलते किसी ने पूछा कि आपकी क्या हो गया तुमको, तो कहा अंगूठी खो गई है। तो उसने भी ढूंढना शुरू किया। 4, 6, 8 लोग इकट्ठा होकर काफ़ी देर तक ढूंढे जब उस जगह पे, और अंगूठी नहीं मिली। तो एक ने पूछा कि मुल्ला तुमको पक्का पता है कि तुम्हारी अंगूठी यहीं गिरी थी? उसने कहा नहीं, वो तो तालाब में गिरी थी। तो कहा कि जब अंगूठी तालाब में गिरी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कहा वहाँ अंधेरा है, यहाँ लैंप पोस्ट के नीचे लाइट है। तो ढूंढेंगे कहाँ? जहाँ लाइट है वहाँ ढूंढेंगे, कि जहाँ अंगूठी गिरी है वहाँ ढूंढेंगे? लाइट है और दिखाई दे रहा है इसलिए वहाँ ढूंढेंगे, या जहाँ गिरा है भले अंधेरा हो, हाथ पैर वहीं जाके मारेंगे? ये समझ में आता? तो जहाँ समस्या है उपाय वहाँ जाके करेंगे, या जहाँ हम खड़े हैं और जो दिखाई दे रहा है वहीं हाथ पैर मारते रहेंगे? तो मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि ये सुख को देखेंगे, ये सुख और दुख होता कहाँ है? हमारे अंदर होता है कि बाहर होता है? ये समझ में आता? सुखी दुखी कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूँ कि ईंट पत्थर हो रहे हैं? आदमी हो रहा है ना, मैं हो रहा हूँ ना, मेरे अंदर घटित हो रहा है। इसलिए अगर सुख और दुख को हमको इस तरह से करना है कि सुख सुनिश्चित रहे और दुख ना हो, तो मूल काम कहाँ होगा? अपने अंदर ठीक करने का कि बाहर ठीक करने का? सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ कठिन लगे बिना संकोच के हाथ उठा के हमको पूछ लीजिएगा। जी कोई प्रश्न है क्या? पीछे आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, दरवाजे के आगे और पीछे, इस पूरे ग्रुप से पूछना चाह रहा हूँ, कोई प्रश्न है क्या? माइक दे सकते, अगर कुछ हो तो बिना संकोच के पूछ सकते हम, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी देर से आप लोगों को कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। ठीक दरवाजे के पीछे और ठीक दरवाजे के आगे, वो पूरे ग्रुप से ही मैं पूछना चाहूँगा कि जो जो प्रश्न हो बिना संकोच के पूछ सकते हैं हमसे। मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार माइक दे दीजिएगा भैया। वहाँ पे पीछे है माइक, पीछे है, हाँ दे दीजिए ना। वहाँ दरवाजे के पीछे लोगों से भी और आगे के लोगों से भी जो प्रश्न हो बिना संकोच के पूछ लीजिए ना। क्योंकि क्या होगा कि अगर प्रश्न हमसे पूछने के बदले आपस में बातें करेंगे ना, तो मेरी एक भी बात सुनाई नहीं देगी आपको, फिर उसका कोई उपलब्धि नहीं है। वही बात मैं दरवाजे के इधर बैठे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रश्न हो तो बिना संकोच के हमसे पूछ लीजिए, तो उस पर बात हो सकती है। अगर आपस में बात करेंगे तो ना मेरी बात सुनाई आपको देगी, ना आपकी बात हमको देगी। बोले तो ऐसा बोले ना कि पूरा क्लास सुन सके। जी बढ़िया, माइक लीजिए, शौक से कहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इतने के साथ देखेंगे ना, तो ये समझ में आता है कि ये जो सुख और दुख की घटना घट रही है वो हमारे अंदर घट रही है। इसीलिए अल्टीमेटली अगर सुख को सुनिश्चित करना है और दुख से मुक्त होना है, तो एक लेवल पर अपने अंदर ही हमको ठीक से काम करने की जरूरत पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर कुछ ठीक करने का काम नहीं करेंगे। इसका मतलब इतना ही है
कि पहले अपने में तृप्त होकर के बाहर ठीक करने जाएंगे या अपने में अतृप्त रह के बाहर ठीक करने जाएंगे। अगर हम गुस्से में हैं और फिर आपको समझाने आएंगे ना, तो आपको समझाना कम करेंगे, अपना गुस्सा ज़्यादा उतारेंगे कि नहीं। हम ही विरोध में हैं, हम ही नाराज़गी में हैं, हम ही अपमान में हैं, हम ही घृणा में हैं, और आपको कुछ अच्छा बताने आएंगे, आपको बताने का काम कम करेंगे, अपना अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा ये ज़्यादा उतारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार को व्यवस्थित होने में भागीदारी नहीं किया जाए, समाज को व्यवस्थित होने में भागीदारी नहीं किया जाए, प्रकृति को व्यवस्थित होने में भागीदारी नहीं किया जाए, लेकिन स्वयं को व्यवस्थित करके ये सारा भागीदारी करने का काम करेंगे या खुद को अव्यवस्थित रख करके ये सारे को ठीक करने का काम करेंगे, ये पहला प्रश्न है। जी नायक जी, आप कुछ कह रहे थे? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस में जो शायद प्रश्न करना भी एक प्रश्न बन करके अभी स्थिति बन रही है कि हेजिटेशन हो रहा है कि मैं प्रश्न अगर पूछूं तो मेरे प्रश्न को पूछने पर मतलब अंदर से स्थिति नहीं निर्मित हो रही है, ऐसा मुझे इस साइड में अनुभव हो रहा है। फिर से बताइए। यानी जो प्रश्न तो है, यहाँ ऑडियंस में प्रश्न है जी, मगर प्रश्न को उठा माइक जरा एक बार चेंज कर दीजिए भैया। बोलो तो आइए बोल एवरेज। जो हमारे आसपास ऑडियंसेस है उनके चेहरे से, उनकी भाव भंगिमा से ऐसा मुझे लगता है कि उनके अंदर प्रश्न तो है जी, मगर वो प्रश्न को उठा पाने के लिए जो साहस चाहिए, जो निर्भीकता चाहिए, जो पहली स्टेज चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि प्रश्न तो है मगर प्रश्न उठाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है, क्या ये भी एक प्रश्न है? देखिए आपने पूछा है तो मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा इसको। इसलिए मैंने शुरुआत की प्रश्न पूछने की या कुछ बोलने की, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले और खड़े होकर कुछ अपना अनुमोदन या प्रश्न रखें, सुझाव रखें। जैसे आपका एक प्रश्न आया था कि सुख अंदर की वस्तु है या बाहर की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑडियंस में से प्रश्न ना आए, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि सुख बाहर से ही आ रहा है। हम तो सुख बाहर को ढूंढते हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है, लेकिन कहने के लिए हम कहते हैं कि सुख अंदर है, लेकिन सुख तो हम बाहर से ही खोज रहे हैं। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? इसी पर ही प्रश्न कर लिया जाए। ठीक है, देखिए मुझसे तो जितना सवाल पूछिएगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, नहीं पूछिएगा तो फिर मुझे क्या करना जी, मैं आगे बढ़ूंगा। भैया मेरा एक सुझाव है जी, आप पर्टिकुलर आदमी को या स्टूडेंट को चिन्हित करें कि आप क्या समझते हो, स्वयं में सुख है या बाहर सुख है, ऐसे चिन्हित करो। टीचर बोल रहे हैं, टीचर ऑलवेज ऐसा ही करते हैं। भैया मैं अपनी बात साथ में रख देता हूँ इधर। जी, अभी जो आपने बताया ना कि जैसे वो अपने पैर कीचड़ वाले और हम सफाई कर रहे हैं, तो बात तो पकड़ में आ रही है कि पहले शुरुआत तो स्वयं के समझने से ही होगा, और दूसरा ये भी होता है कि काम हम पे करे, लेकिन कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम पे फुल स्टॉप वाला काम करने के बाद काम शुरू होगा कि दोनों पैरेलल हो गए। मतलब मेरा कहने का मतलब, समझ गया? हाँ, तो वापस सबको मेरी बात पहुंचे उसके हिसाब से बोलता हूँ जी जी, कि जैसे काम जो है अभी जो है समझने वाला काम है ना, वो निरंतर प्रोसेस मुझे तो लग रही है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट तो है नहीं ऐसा कुछ कि 2-4 लाइनें पढ़ ली और समझ लिया। रियलिटी ऐसी है कि पूरे का पूरा मैं समझ जाऊँ फिर एक्सप्रेस हो, कि फिर मेरा समझना और एक्सप्रेस होना दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। काम स्वयं में करना है वो समझ में आ रहा है, फिर सुख वाली बात बताई तो सुख मेरे अंदर है वो भी समझ में कई बार आता है, लेकिन काम जनरली क्या हो जाता है, बाहर ही हो जाता है, अंदर वाला काम कम होता है। तो ये चीज़ मेरा आज ही ध्यान गया कि जब हम किसी के साथ किसी का कोई मसला है और सुलझा रहे हैं, तो पहले मुझे देखना है अपने अंदर है, बाहर वाली स्थिति तो बाद में देखनी है। कई बार मेरे में ही वो गैप है और मतलब मैं एक्सप्रेस हो रहा हूँ तब वो गैप के साथ ही एक्सप्रेस हो रहा हूँ,
तो इसी वजह से वहाँ पे सोल्यूशन आते भी है तो वो परमानेंसी वाले नहीं होते, वो टेम्पररी बन जाते हैं कि 2-4 दिन के लिए कुछ हो गया फिर वापस जहाँ थे वहाँ खड़े रहे। धन्यवाद। बढ़िया। जो बात आप तो- कह रहे हैं ना, हाँ हाँ, इस पर मैं भी, जो भैया जी ने भी बताया कि जो खुशी हम, यानी खुशी की चाहत तो हमारे में बनी रहती है, सुख भी चाहते हैं और खुशी भी चाहते हैं, मगर अभी वो हमारे अंदर अस्थायित्व नहीं हो पा रही है, वो बदलने वाली चीज़ है। ढूंढ रहे हैं तालाब किनारे, लाइट पोस्ट के नीचे गिरा है तालाब किनारे, तो कहाँ मिलेगा जी? जी, अभी तो हमारी आंखों में वो प्रकाश है तो हम प्रकाश लेके ही चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि सही जगह तलाश करना है। वही तो, प्रकाश सही जगह पे मारने से वहाँ कुछ मिलेगा, उसको दूसरी जगह मारते रहेंगे तो पूरी जिंदगी लगा के भी नहीं मिलेगा, ये पकड़ना जरूरी है। जी, इसीलिए आज शिविर में आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अपने से ही इस खुशी को शुरू करता हूँ। धन्यवाद। बढ़िया। तो जितने सवाल आए ना, मैं उसको एक एक करके थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, और ये प्रश्न वाले पे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर टीचर लोग बैठे हुए हैं। ये जो बात भैया ने कही ना कि क्या पूरा समझने के बाद हम दूसरे को समझाने या बताने जाएंगे, मेरा उत्तर इसमें बहुत सिंपल है, नहीं। आपने अगर कक्षा 5 तक की पढ़ाई ठीक से कर लिया है ना, तो आप कक्षा 5 तक के बच्चों को गणित पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, विज्ञान पढ़ा सकते हैं। अगर आपने कक्षा 10 तक की पढ़ाई ठीक से कर ली है तो आप कक्षा 10 तक के बच्चों को, क्लास 10th तक के बच्चों को मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो जितने चीज़ों को हमने ठीक ठीक समझ लिया है, हम उसको दूसरे को समझाने का काम कर सकते हैं, गलती सिर्फ ये होती है कि जो हम खुद नहीं समझते हैं वो भी दूसरे को समझाने चले जाते हैं। यहाँ चूक है। ये ऐसा है कि हमको गणित नहीं आता है, आपको पढ़ा देंगे, हमको अंग्रेजी नहीं आता है, आपको बता देंगे। और आदमी को कई बार बहुत रस आता है इसमें। वो हमारे यहाँ कहते, कभी कभी हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझ में आई औरों को भी समझाया है। तो उस डिजाइन से चलने की बात नहीं कह रहे। हाँ, इसमें एक बात और जरूर जुड़ जाती है इस समझने समझाने की प्रक्रिया में। आप गणित पढ़ा रहे हो ना, उसमें आपका आचरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक, व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस रूप में कि आप गणित पढ़ा सकते हैं फिर भी, और बच्चा उसको इग्नोर करके पकड़ सकता है। लेकिन वैल्यूज़ की बात जब कभी भी बताने जाएंगे, आचरण की बात जब कभी भी बताने जाएंगे, जीने की बात जब कभी भी बताने जाएंगे, तो गुस्सा करते हुए ये नहीं बताया जा सकता है कि तुमको गुस्सा करना ठीक नहीं है। विरोध करते हुए ये नहीं बताया जा सकता है कि तुमको विरोध करना ठीक नहीं है, तुमको तो स्नेह से जीना चाहिए। तो यहाँ एक कड़ी और बीच में जुड़ जाती है अपने आचरण की, कि अपने आचरण में वो हिस्सा अगर नहीं आएगा ना, तो फिर दूसरों तक पहुँचने का काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ का क्रम देखिएगा, तो जितना हमने समझा उतने के आचरण का प्रयास कम से कम, और फिर दूसरे को उतने समझने में सहयोग। ये लूप चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। जब हम क्लास 5 में हैं तो 5 तक को समझने जीने में सहयोग कर सकते हैं, 10th में आएंगे तो 10th तक को कर सकते हैं, 12th में आएंगे तो 12th तक को कर सकते हैं। मैं भी अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि जीवन विद्या का जो आखिरी जगह है अनुभव प्रमाण पूर्वक जीना, मैं कोई वहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो भैया इसको ही श्रम गति परिणाम बोलते हैं ना, श्रम गति परिणाम, श्रम गति। जी, तो इन शब्दों को मैं नहीं ले रहा हूँ, कभी आगे किसी पुस्तक में मिलेंगे तो हम। मेरा क्वेश्चन था, मैंने पूछ लिया। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये बात मुझे इस संदर्भ में कहनी थी। प्रश्न नहीं पूछने के देखेंगे ना, 2-3 कारण हैं, और उसको मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है हम क्लास में भी उस बात को फिर ठीक से पकड़ पाएंगे कि बच्चा क्यों नहीं सवाल पूछता है। 2-3 कारण हैं उसके, आप देखिए कि आपके लिए कौन सा कारण है। ठीक है, एक कारण तो ये होता है कि ये जो टीचर यहाँ खड़ा होकर बोल रहा होता है ना, वो टीचर वो स्पेस ही नहीं देता है बच्चे को सवाल पूछने का। हो सकता है मैं भी आपको स्पेस नहीं दे पा रहा हूँ सवाल पूछने का, तो उसको थोड़ा और बेहतर करूँगा मैं, बट पहला जगह ये होता है। ठीक है, मुझे याद है, मैं इवन IIT कानपुर का
हमारे एक टीचर थे, उनके क्लास में जो भी बच्चा सवाल पूछता था ना, एक ही बार पूछता था, दोबारा पूछने का साहस नहीं करता था। क्योंकि उस सवाल के उत्तर में वो उसको 4 चीज़ें पूछते थे, तुमको ये पता कि नहीं, वो पता कि नहीं, ये किया कि नहीं, नालायक नहीं किया तो 10th में कैसे आ गया तुम, ठीक है, IIT पहुंच कैसे गया तुम, नकली डिग्री तो नहीं थी, चोरी तो नहीं किए थे। अब ऐसा 10 बार जब उसको कहेंगे तो वो बच्चा दोबारा उस टीचर के साथ तो नहीं ही पूछेगा, कहिए पूरी ज़िंदगी सवाल पूछने के पहले 10 बार सोचे। तो अगर आपके साथ भी पास्ट में ऐसा हो रखा होगा तो सवाल पूछने में संकोच तो बनेगा, कठिनाई तो होगी। भैया भैया ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन भी ऐसा ही जा रहा है कि कभी भी एज अ टीचर भी बोल रहा हूँ और नॉर्मली ऑब्जर्वेशन भी ऐसा है कि जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो उसका आंसर देने की जगह पे उसको और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उसका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज हो जाता है, फिर वो आगे उस चीज़ को बढ़ाता नहीं है और सेकंड टाइम से हिम्मत नहीं करता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मली उसको कैसे हैंडल किया जाए, जैसे उसको पहले जो पूछा गया कैसे उसको करेंगे? इस पर आता हूँ कि कैसे उसको करेंगे। एक दूसरी जो समस्या होती है ना, ध्यान रखता हूँ मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। एक दूसरी जो समस्या होती है ना वो ये होती है कि एक बच्चा जब कोई सवाल पूछता है या हम में से कोई जब सवाल पूछता है ना, बाकी सब लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये ऑडियंस, क्लास या ग्रुप भी जो एक तरह से मजाक उड़ाने का काम करता है ना, ठीक है, वो दूसरी जगह है जो किसी को सवाल पूछने से रोक देती है, रोक देती है। ठीक, ये दिखता है। हमने तो बहुत सारे सेशंस में देखा, लोग अपनी बहुत सारी पर्सनल जर्नी को शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। उस पर अगर 4 आदमी हंसना शुरू कर दे, 2 आदमी उसको जाके सलाह देना शुरू कर दे कि तुम नालायक, तुमको ये भी नहीं आता है, ऐसे ऐसे ठीक करो, आदमी आगे से बोलना छोड़ देता है। और मजे की बात है, दूसरे की समस्या का समाधान सबके पास। नहीं भरोसा हो तो पूछ के देख लीजिएगा। पूछ के देख लीजिएगा। अपनी समस्या का समाधान हम लोगों के पास नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। हर दूसरे को काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति खुद 10 समस्याओं से ग्रस्त है, ठीक है, 10 समस्याओं से ग्रस्त है। तो ये पकड़ना जरूरी है कि दूसरा कारण ये होता है कि वो ग्रुप किसी जगह पर उसका मजाक उड़ाने का काम करता है, अपमानित करने का काम करता है, तो वो सवाल नहीं पूछता। तीसरा एक कारण ये भी होता है कि कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर ये बात लगता है कि ये सवाल हम पूछेंगे तो लोग ये तो नहीं मानेंगे कि मैं बुद्धू हूँ, ठीक है, लोग ये तो नहीं मान लेंगे कि मैं बेकार हूँ, ठीक है। वो तीसरी जगह होती है जिसके कारण वो सवाल पूछने से डरता है। आप पूछेंगे ये सब का उपाय क्या है? पहली जगह का उपाय तो एकदम सिंपल है कि एज ए टीचर हम अगर प्रश्न के बदले प्रश्न पूछ भी रहे हैं तो उसको समझने में सहयोग करने की जगह से पूछ रहे हैं या तुमको कुछ नहीं आता है ये सिद्ध करने के लिए पूछ रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। प्रश्न हो सकता है मैं भी आपसे किसी प्रश्न के बदले प्रश्न पूछ दूं, लेकिन वो प्रश्न का आशय आप चीज़ों को ठीक ठीक समझ सकें ये है, या तुमको कुछ नहीं आता है ये सिद्ध करना है। ये शिफ्ट चाहिए। पहली जगह पर देखिएगा तो ये शिफ्ट चाहिए कि बच्चे को हम इनकरेज कर सकें, स्टेप बाय स्टेप एक सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड कर सकें ताकि वो आगे बढ़ सके। मैं बार बार कहता हूँ आपको कंप्यूटर नहीं आता हो, ठीक है, और मैं यहाँ से शुरू करूँ ये कंप्यूटर का ज़माना है, इस ज़माने में कंप्यूटर के बिना क्या होता है। आज देखो 12 साल का बच्चा भी कंप्यूटर ठीक से चला लेता है, तुम 25 साल के हो गए हो, तुमको कुछ नहीं आता है, नालायक हो, निकम्मे हो। ये कहने से, सुनने से आप कंप्यूटर सीख लेते हैं क्या? ये सब भाषा सुन के आप हमसे दूर होंगे या आगे कंप्यूटर सीखने का आपको मोटिवेशन मिलेगा? ये दिखना ज़रूरी है। हमको लगता है हम तो मोटिवेट कर रहे हैं उसको समझने के लिए। तरीका हमारा ऐसा हो जाता है कि अगली बार हम बच्चा हमको देख करके दूसरे दरवाजे से रास्ता बदल लेता है कि नज़र न पड़ जाए इनके सामने फिर से। हमको ये पकड़ना ज़रूरी है कि कोई गड्ढा में गिरा हुआ है ना, उसको आप लाख कह दीजिए,
दिन के उजाले में आँख खोल के चलना चाहिए था, 12 बजे तुम ये 5 फीट के गड्ढे में रोड पे गिरे हुए हो। कितना दिन से तुमको कहते हैं थोड़ा आँख खोल के चला करो। ये कहने से वो गड्ढे से बाहर निकल जाएगा, या उसको एक सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करेंगे और स्टेप बताएंगे कि बेटा यहाँ 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 एक एक स्टेप पैर रख के निकलो, तब वो बाहर निकलेगा। ये प्रोसेस समझ में आता है। और जितना हमारा अगले के प्रति संबंध में स्नेह का भाव होता है, जितना अगला हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, अपने से जुड़ा हुआ महसूस होता है, उतना इस काम को हम ज़्यादा सटीकता से कर पाते हैं, ज़्यादा सटीकता से कर पाते हैं। तो एक टीचर के रूप में देखिएगा ना, तो हमको 2 स्टेप दिखता है। पहला स्टेप तो यही दिखता है कि अपने बच्चे के साथ भी हम वो स्पेस और अवसर अपने घर में दे सकें। फिर दूसरा, जैसे अपने बच्चे के लिए हम घर में स्पेस दे पाएंगे, वैसा हम इस पूरे स्कूल के वो बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास के, उनको भी हम अपने उस बच्चे की तरह देख करके वो संबंध के भाव से जिएंगे, तब हमारे आचरण में ये बात आएगी, अन्यथा आना मुश्किल है। वो जो कृतज्ञता की बात जैसे की थी ना, कि कुछ निश्चित सच्चाई को देखने के आधार पर ही अपने में कृतज्ञता आती है। ऐसे ही जब तक वो बच्चा हमको अपने बच्चे के रूप में अपना संबंधी नहीं दिखाई देता है, तब तक वो स्नेह का भाव होना बहुत मुश्किल है। तब तक वो अपने में धैर्य से खड़े होना और एक एक स्टेप उसको समझने में सहयोग करना वो मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं हमारा जो टीचिंग हो या कोई भी काम हो, वो बेसिकली एक जॉब की तरह हम देखते हैं, एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं, जहां हमको लगता है कि कुछ घंटे हमने बिता लिए, हमारी बात पूरी हो गई। और मज़े की बात है कि उस विधि से अगर बैठेंगे ना कि कुछ घंटे हमको बिताना है, लगाना है, सिर्फ इसलिए कि काम है और जॉब है, जितनी देर वहाँ रहेंगे दुखी और परेशान रहेंगे, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। अगर मुझे यहाँ आप लोगों से चर्चा करने में कोई रुचि नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो, और ज़बरदस्ती हमको करना पड़े, एक एक वाक्य बोलना भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो अगर हमको बच्चा अपने संबंधी के रूप में नहीं दिखता है, संबंध में शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी नहीं दिखती है, अगले को समझदार जिम्मेदार बनाना अपनी भूमिका के रूप में नहीं दिखता है, काम में कभी भी रुचि नहीं आएगी और वो एक बोझ की तरह लगेगा। वो एक पुरानी कहानी है कि एक बच्ची होगी 10-12 साल की, वो अपने 6-7 साल के बच्चे को पीठ पर गोद लेके, पीठ पर बांध करके पहाड़ी चढ़ रही थी। तो बगल से एक सन्यासी गुजर रहे थे, उन्होंने उसको कहा कि बेटी तुम तो खुद ही 12 साल की हो और ये 6-7 साल के 18 किलो बच्चे का बोझ उठा करके कैसे चढ़ पा रही हो? मैं तो खाली चढ़ने में ही परेशान हो रहा हूँ। उस बच्ची ने बड़ा सिंपल जवाब दिया कि ये आपके लिए बोझ होगा, मेरे लिए तो भाई है। ये जो संबंध की दृष्टि, ये जो संबंध की दृष्टि हमारी आती है ना, अगला हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, संबंध में स्नेह का भाव होता है, उसमें वो जिम्मेदारी और भूमिका अपनी दिखती है ना, तो वो काम को करना हमारे लिए सरस होता है, सार्थक होता है, रुचिपूर्ण होता है, तृप्तिदायक होता है। पैसा तो उसके साथ मिलता ही है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए पैसा ना मिले, ठीक है, लेकिन काम जो हम कर रहे वो उसकी सार्थकता को पहचान करके कर रहे हैं, पैसा को साइड में देख रहे या पैसा को प्राइमरी मान रहे, काम को बोझ की तरह देख रहे, ये मुद्दा है। जितना भी हम काम को बोझ की तरह देख करके चलेंगे, उतना दुखी रहने का गारंटी है। जितना उस काम की सार्थकता को पहचान करके उसमें हम भागीदारी करेंगे, उतना वो काम हमको तृप्ति देता है। कुछ कह रहे थे आप? अभी बस आपने जो बताया उसमें बहुत कुछ आ ही गया बोलने जैसा रहा नहीं, लेकिन एक जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, वो चीज़ मुझे भी लगता है कभी, वो बच्ची वाली कि भी 12 साल की बच्ची और 6-7 साल के बच्चे को उठा के चल रहे, उसको लगता है मेरा भाई है। तो ऐसा एग्जाम्पल ऐसा भी है, जैसे हम अपने बच्चे को गोद में उठा के
चलते हैं ना तो उतना भार नहीं लगता है जितना पड़ोसी के बच्चे को उठा के चलते हैं। बट मैंने देखा हुआ है कि भी कई बार मैंने खुद भी ऐसे महसूस किया हुआ है कि भी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब टाइम स्पेंड करना तो गोद में उठाना, उसके साथ खेलना वो आराम से होता है। लेकिन जब वही काम दूसरे बच्चों के साथ करते हैं तो वहाँ पे उतनी कनेक्टिविटी नहीं फील होती है, क्योंकि वहाँ पे संबंध अभी समझ में पूरा नहीं आया है। तो वो बात तो है, वो भारी लगता है, मतलब हम जानबूझ के भारी हो रहे हैं, वरना वो संबंध पहचान में आ जाए तो हर जगह पे आराम से काम किया जा सकता है ना। और शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया तो तभी ठीक चल सकती है जब जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उतने को कम से कम अपने संबंधी के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपनी अगली पीढ़ी के रूप में देख सकें, तभी हो सकता है। ये भी मैंने देखा है श्याम भैया की पिछले 32-34 सालों में शिक्षण का कार्यक्रम देखा, तो जो टीचर स्वयं को पढ़ने में और पढ़ाने में मतलब खुशी महसूस करते हैं उसके लिए टाइम कम पड़ जाता है, और जो टीचर अपनी पढ़ाने में खुद खुशी महसूस नहीं करते हैं वो बार बार घड़ी देखता रहता है कि पीरियड कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो। और बच्चे उनका मुंह देखते रहते हैं कि ये कब जाए यहाँ से। जी भैया, थैंक यू। भैया जी, एक अनुभव ऐसा भी है जी, जैसे कि इतने सालों से टीचर्स का प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और जब हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं टीचर्स को, तब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को कभी इंसल्ट कर देना या फिर उसको बोलना कि इतने टाइम क्या कर रहे थे, मैं पढ़ा रही थी तब क्या कर रहे थे, तो उस केस में कभी ना कभी टीचर की खुद की भी तैयारी नहीं होती है और ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, तब उनको लगता है कि अब मेरे पास जवाब नहीं है, तब जाके भी ऐसे किस्से बनते हैं। ठीक कह रहे हैं। उससे अच्छा ये हो सके कि भाई कल मैं इसको देख के आपको बताऊंगा, कल देखते हैं, मुझे भी देखना पड़ेगा, ये कोई गलत बात नहीं है, टीचर को भी सीखना तो है ही रोज़। बिल्कुल। और इसका आज के solution गूगल ये के है। युग में तो हाँ, ये हो ही ज़रूरी गया है है। कि इंफॉर्मेशन गूगल हाँ। के पास ज़्यादा है हम लोगों से। कहीं वो एक डर होता है अंदर कि बच्चा क्या समझेगा कि मेरे टीचर को भी नहीं आता, ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, उसको ऐसा कहते हैं। जी, तो ये जो आखिरी बात थी ना कि हमको कहीं ना कहीं ये भय होता है कि लोग सुन करके हमको बुद्धू ना मान लें, ये ना मान लें कि क्या इसको इतना भी नहीं आता है। ठीक है, ये जो भय होता है ना, ये उसी भय का दूसरा रूप है, जहाँ हमको लगता है कि एज ए टीचर हम ये बात को कहेंगे तो हमारा क्या प्रतिष्ठा रहेगा या हमारा क्या सम्मान रहेगा। हमको ये समझना ज़रूरी है कि आज के इस युग में आप अगर कुछ इस तरह का कह करके उसको जो है बिना ट्रांसपेरेंसी से चीज़ों को बताए, अलग अलग तरह से उसको टालने का या बेकार बताने का काम करते हैं ना, तो बच्चा इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, उसको वो भी समझ में आता है, और उसमें हमारी आपकी इज्जत ज़्यादा खराब होती है। ज़्यादा खराब होती है, ये समझना ज़रूरी है। इनफैक्ट आप देखेंगे ना, धीरे धीरे आप किसी के साथ भी अपने से सवाल पूछ के देखिए, अगला ट्रांसपेरेंटली अपनी स्थिति को ठीक ठीक बता दे, तब उसके साथ आपको ज़्यादा आत्मीयता महसूस होती है। यह 10 बातों को अलग अलग तरह से छुपा के 15 मिनट तक आपको घुमाते रहे, तब आपको उसके साथ ज़्यादा विश्वास और आत्मीयता महसूस होती है। ये सवाल अपने से पूछने की ज़रूरत है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती हो तो मैं सीधा सीधा उसको स्वीकार करके कल इस पर बात करेंगे, ये देख करके मैं क्लोज करूं, ये आपको ज़्यादा ठीक लगेगा, या मैं 15 मिनट तक आपको भाषा में घुमाता रहूं, ठीक है, जिसमें आपको किसी जगह पर फील होने लगता है कि इसको पता नहीं है, ऐसा करके 15 मिनट गुजारूं, तब आपको ज़्यादा विश्वास और भरोसा बनेगा हमारे ऊपर। ये सवाल पूछना ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो ठीक से देखेंगे ना, तो जितने अच्छे से हम चीज़ों को पूछ लेते हैं, बता लेते हैं, कर लेते हैं, उतना दोनों बेनिफिट होता है। मैं तो हर बच्चे को ये बात कहता हूँ कि अगर किसी प्रश्न को पूछने में तुमको इस कारण से संकोच हो रहा है कि कोई तुमको बुद्धू ना मान ले, कुछ और ना कह ले, तो ये सोचो कि अभी 2 मिनट के लिए लोग तुमको बुद्धू मान लें और तुम ये ठीक कर लो, ये ज़्यादा ठीक है, या पूरे ज़िंदगी भर इस बात पर तुम डाउटफुल बने रहो, शंका में बने रहो, ये ज़्यादा ठीक है।
इनफैक्ट जितने प्रश्नों को आप अपने अंदर रोक करके रखे हैं और पूछने का काम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो सारे प्रश्न हैं जो आपके समझने की यात्रा में बाधा है। और यहाँ खड़ा हुआ आदमी कितना भी बोलता रहे, वो अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि प्रश्नों का सील्डिंग है बीच में, उसका पर्दा खड़ा है बीच में, उसकी दीवार खड़ी है बीच में। जितना आप उस प्रश्नों को सटीकता से पूछने का काम कर लेंगे, उतना वो ब्लॉकेज और बैरियर टूट जाता है। तो समझने की प्रक्रिया ठीक ढंग से शुरू ही नहीं होती है अगर हम अपने प्रश्नों को अपने अंदर रोक करके रखे हैं, तो शुरू ही नहीं होती। सर, आपके जो ये बात है उसके जवाब में मैं निवृत्त प्रिंसिपल हूँ और जी। बच्चों को ये कहते रहता था, अनेक प्रश्नों, समस्याओं, कोयड़ा गूंचो। ये प्रश्न के पर्याय है। अनेक प्रश्नों, क्वेश्चंस, समस्याएं होती है, उलझन है। कोयड़ा, जो गणित में कोयड़ा होता है वो भी समझ लो, जीवन के भी कोयड़े। गूंचो, और जो डोर उलझ जाती है ना पतंग की, ऐसे जीवन के प्रश्न या गूंच पड़ जाती है समझ में। तो अनेक प्रश्नों, समस्याओं, कोयड़ा गूंचो, जिंदगी ना पटारा मां छे भरेलो खजानो ऊंचो। जिंदगी ना पटारा मां छे भरेलो खजानो ऊंचो। तो क्या करना है? करता जसो प्रयत्नो अने उकेल सो गूंचो। करता जसो प्रयत्नो अथवा पूछता जसो प्रश्नों अने उकेल सो गूंचो। सदगुरु मिले जैसे फिजिक्स के सर हैं हमारे, गिरीश भाई या सतीश भाई, तो उनको पूछो जो जानकार है, और जो ट्रांसपेरेंट होंगे आपके जैसे लोग तो वो बता भी देंगे। तो पूछता, अभी मैं वो पंक्ति को परिवर्तित कर रहा हूँ, पूछता जसो प्रश्नों अने मार्गदर्शन मेळवी उकेल सो गूंचो। तो मेळवी શકશો તમે, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, तो मेळवी શકશો તમે બધાએ પુરસ્કાર ઊંચો. The great prize is awaiting for you. Your goal is to be achieved. Arise, awake and stop not till your goal is reached. धन्यवाद. बढ़िया। तो ये देखना चाहिए, हम अगर एक अनुकूल अवसर दे पाएंगे एक शिक्षक के रूप में, एक को फेलो पार्टिसिपेंट के रूप में, उस पूरे वातावरण को ऐसा बना पाएंगे जहां आदमी प्रश्नों को पूछने से भयभीत ना हो, तो हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। अगर वो वातावरण बनाने के बदले हम एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां अगले को कुछ भी पूछने में संकोच हो, तो हम एक दूसरे के लिए समस्या है कि नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट में बात आ गई थी तो मैंने सोचा कुछ बात उस पर कर दूं। मैं लौट करके इस बात पर आ जाता हूं कि एक विकसित मानव को देखेंगे तो उसके गोल को हम लोगों ने पहचाना था कि सुख और समृद्धि पूर्वक जीना उसका गोल है। तो प्रश्न बनता है कि ये सुख क्या है, समृद्धि क्या है, उसको हम धीरे धीरे पहचान सकें। मैं उस पर थोड़ी बात करके फिर लौट के आता हूँ इस पर। सुख को डिफाइन करते समय ये बात कहा है कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, स्थिति का मतलब हमारे अंदर जो कुछ भी है, परिस्थिति का मतलब ये बाहर, परिवार, समाज, प्रकृति में जो हमारा जीना है। तो स्टेट का मतलब है जो हमारा अपना इनर स्टेट है, सिचुएशन का मतलब है जो बाहर का हमारा सिचुएशन है। अगर उसमें हार्मनी होती है, व्यवस्था होती है, संगीत होता है, सामंजस्य होता है, तो हम अपने में एक सहजता का अनुभव करते हैं, एक सहजता को महसूस करते हैं। वैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। इस रूप में व्यवस्था में जीने का, सहज स्वीकृति के भाव में जीने का नाम सुख है। और इसके विपरीत देखेंगे तो जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम जी रहे हैं, अगर उसमें अंतर्विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होता है। तो अंतर्विरोध में, अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होने का नाम दुख है। हम जीना नहीं चाहते हैं अव्यवस्था में, अंतर्विरोध में। अभी भी क्लास में अव्यवस्था हो जाए तो हमको लगता है इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ये ठीक नहीं। व्यवस्थित जब तक क्लास चल रहा हो लगता है ठीक है, इसको बनाए रखने की ज़रूरत है। तो व्यवस्था जब कभी भी होती है हम उसको बनाए और बचाए रखना चाहते हैं।
अव्यवस्था जब कभी भी होती है हम उसको ठीक करना चाहते हैं, नहीं ठीक कर पाते हैं और मजबूरन उस अव्यवस्था को हम भोगते रहते हैं, तो उसी का नाम दुख है। दुख है। तो सुख की जो प्रक्रिया घटित होती, सुख या दुख की ना, वो देखेंगे तो हमारे अंदर होती है। नायक जी जो बात कह रहे थे कि ढूंढने हम सुख दुख को बाहर जाते हैं, कितना भी बाहर उस सुख दुख को ढूंढने का काम करिए, ये दिखाई देता है कि बाहर ढूंढने का सारा प्रयास करने के बावजूद भी सुखी दुखी हो कौन रहा है उस समय भी। कुछ अच्छा खा के, कुछ अच्छा पहन के, कुछ अच्छा देख के, कुछ अच्छा पद पाके, कुछ अच्छी प्रतिष्ठा पाके भी अगर हम सुखी दुखी होने का काम कर रहे हैं, ये सब हमने बाहर की लिस्ट ले ली। इस प्रक्रिया में भी कौन सुखी दुखी हो रहा है, मैं हो रहा हूँ कि कोई और हो रहा है? वो सुख और दुख मेरे अंदर घटित हो रहा है कि कहीं बाहर घटित हो रहा है? ये दिखता है कि घटित जो सुख और दुख हो रहा है वो तो हमारे अंदर हो रहा है, ना कि बाहर हो रहा है। इनफैक्ट इसी से ये बात समझ में आती है कि बाहर की किसी भी परिस्थिति को बहुत सजा करके, व्यवस्थित करके उतने भर से हम सोचेंगे कि हम सुखी हो लें, तो ये ऐसा ही है कि इस कमरे को साफ करने के लिए इसके आसपास की सब जगह की सफाई कर दें कि वहाँ से कचरा ना आए इसमें। ठीक, सारे खिड़की दरवाजे पर जाली लगा दें, सब तरह का सफाई कर दें, पूरा आसपास। कमरे के अंदर झाड़ू ना लगाएं, पोछा ना लगाएं, जाले ना जा रहे हैं। ठीक, कभी भी कमरा साफ होगा क्या? ये ठीक है कि कमरा को साफ बने रहने के लिए उसके आसपास की जो जगह है वहाँ से भी कचरा नहीं आए, इसका इंतजाम तो हम करेंगे। तो हम आसपास भी सफाई करेंगे, कचरा है तो भी हम जाली लगा के रखेंगे कि कम से कम अंदर ना आए, ये इंतजाम करेंगे। हम बाहर की सारी अनुकूलता इंतजाम कर दें, खूब फूल पत्तियाँ लगा दें, सौंदर्य की जितनी चीज़ें समझ में आती हो वो कर दें, सफाई स्वच्छता की जितनी चीज़ें समझ में आती हो वो कर दें, लेकिन कमरे के अंदर सफाई नहीं करेंगे तो कमरे से बदबू आएगी कि नहीं आएगी? तो बाहर की सफाई जरूरी है, बाहर व्यवस्थित होना जरूरी है, लेकिन पहले इस अंदर को व्यवस्थित करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर इसको नहीं किए हैं तो बाहर कितना भी हाथ पैर मार लें, दूरी उतनी ही दिखाई देगी। क्योंकि जहां सुख दुख हो रहा है, जिस जगह पर वो सफाई करनी है, उस जगह पर अगर हाथ लगाने का काम हम नहीं कर रहे हैं तो बाहर कितना भी उसको करने का काम कर लें, हाथ खाली रहेगा, ये पक्का है। आपके कपड़े गंदे हों, आप अपने कपड़े को छोड़ करके पूरे घर की सफाई कर डालिए, कपड़ा साफ होगा उससे कि नहीं होगा? तो जहाँ समस्या है वहाँ हाथ लगाने के बदले बाकी कितनी भी जगह पर हाथ पैर मारने का काम कर लें, पूरी जिंदगी हाथ पैर मार के कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर अंगूठी तालाब में खोई है तो अंधेरा हो कि उजाला, खोजना तालाब में ही होगा। उसको लैंप पोस्ट के नीचे उजाले में आके ढूंढने का कितना भी प्रयास करेंगे वो मिलना नहीं है जी, मिलना नहीं है। ठीक है, विचार किया जाए इस पर। ब्रेक का समय हो गया है तो हम 11 बज रहा है, हम 15 मिनट बाद 11:15 बजे मिलते, तो इस पर थोड़ा और विस्तार कर लेंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी प्रश्न हो बिना किसी संकोच के पूछ लीजिए। अगर उसको नहीं पूछेंगे ना तो वो प्रश्न ही आपके लिए ब्लॉकेज और बैरियर बना रहेगा जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो 15 मिनट बाद मिलते। नमस्ते।